everyone, good evening. I don't know what the name I should say with the heading as Galaxy A30. And hello, Mirasar and Shra. Hello, how are you? So I think all of you are ready for today's QA orientation session one. And if yes, just gives me a thumbs up or anything in the chat box so that I could say that you guys are listening me properly. And the one who is with the Galaxy, if you could please rewrite your name, it would be helpful for me to address you. Yes. Just write let's start sir or whatever. Yes, we are able to hear sir and we are cheer up sir, whatever. Shra, anything which motivates us. कुछ भी लिखना चाहोगे कुछ भी फटाफट. Hello Thomas sir. Let's quickly start with the session with something very interesting, and I'll be just taking another 30 seconds if I'll see more people joining. Shra, can you hear me? Shra, it will be really great if you could reply. Good, thank you. At first, let's start a small disclaimer. मैं पूछना चाहूँगा any language bar if I could mix Hindi and English, only Hindi, whatever, or comfortable in bilingual. ऐसे bilingual अच्छा रहता है, but still if you have any problem, I would be very much aware if someone has issues at the start of the session, ताकि मैं उस चीज़ को ध्यान में रख सकूँ when I proceed. All comfortable with all type of languages? नहीं, सारी languages तो मुझे भी नहीं आती. Okay, Shreyas is comfortable in English. Shreya, not even small little bit of Hindi we can mix up or total English. Okay, थोड़ा mix चलेगा. Yes. Quickly, जल्दी जल्दी reply करो. That shows how active you guys are. You want your teachers to be active? Yes. I also want you to be active. I hope it's really good for session and for cat. Quickly reply, quickly. So let's start the session with an interesting part. Before starting anything about me or whatever, a small question based a छोटा सा puzzle है एक छोटी सी किताब से काफी अच्छी book है. I'm going this question and there's a situation in front of you. I hope we all have played this game in our school days anytime. थोड़ा टीचर से बच के या कुछ भी थोड़ा शरारत के लिए या खेलने के लिए या टाइम पास करने के लिए अपन कभी ना कभी हमने गेम खेली होगी. And we know the rules of these games. Anyone who makes a pair of three diagonally, horizontally, vertically, है ना, तो वो इंसान जीत जाता है. The one who makes a three pair triplet बनाता है पहला will win the game, right? Yes, yes, Shreya, right? So now there's a situation in front of you. The situation has reached here, and we don't know who started the game and how it reached here. But the problem here is the one who is going to play now is definitely going to win. If this situation is clear, the one who is going to play is going to definitely going to win. Because हम अब जीरो बीच में लगाने वाले तो जीरो पक्का जीतने वाले. If I'm putting cross here, then this is triplet of cross here, and cross is going to win definitely, right? So my question is, who will win? My question is, who will win? इसमें कौन जीतेगा? Yeah. So give me your intelligent answers. दो ऑप्शंस है, सिर्फ दो ऑप्शंस है आपके पास. इधर जीरो विल विन और क्रॉस विल विन. सिर्फ दो ही ऑप्शंस है आपके पास. ए ऑप्शन इज जीरो, बी ऑप्शन इज क्रॉस. तो दो ही ऑप्शंस है आपके पास. एनीवन हु will play now will win, right? So who will win out of zero or cross? Yes. Tell me, who is going to play or who is going to win right now? Come on. Yeah, what should be the thought process to reach to the answer? That is another thing which we can think of in this particular question. See, if you guys concentrate and participate, I think this becomes very easy. Yes.
Come on, Shreya, reply. Yes, come on. Who is going to win? Either zero or cross. Very easy and a simple game, I suppose. Okay, make a blind guess. Who is going to win? Make a blind guess. कौन जीतने वाला है? Cat gives you four options and giving you only two, right? No one. Shreya says no one. Okay. नहीं श्रेया, कोई तो जीतने वाला है for sure. No one is basically the option which are not given to you. Though. No one is basically cannot be determined. मैंने वो option नहीं दिया आपको. ठीक है? तो कोई ना कोई तो for sure जीतने वाला है. कोई ना कोई तो for sure जीतने वाला है. तो कौन जीतने वाला है? चलो श्रेया, just give me a blind guess. Zero या cross. Just give me a blind guess. Who is going to win? Whatever you feel, just give me a blind workout. Just give me a blind workout. If there is 0% chance, then he is going to win. हाँ वो तो है, जीरो का चांस होगा तो जीरो जीतेगा, तो अगर आपने गेस मारा जीरो जीतेगा, ओके। नहीं तो क्रॉस भी जीत सकता है, ऐसा ना। तो अच्छा, अभी हम सीखते हैं से क्वेश्चन को करने का स्टाइल क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूँ कि क्रॉस जीतेगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूँ, क्रॉस जीतेगा। एंड अदर पीपल ऑल्सो, थॉमस सर, गैलेक्सी एंड आनंद सर, अभी मान के चलते हैं क्रॉस जीतेगा कि क्रॉस यहाँ पे खेलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर क्रॉस जीतने वाला है, ये एक बात तो बहुत श्योर है, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट जीरो मस्ट हैव प्लेड द लास्ट चांस टू रीच है। Yes, quickly reply yes, no. This is very sure that to reach at this position, if Cross is going to win, Zero must have placed this zero or this zero or this zero at the last to reach at this position. Yes. तो खेलने का तरीका क्या है ना, हम बारी बारी से एक जीरो रिमूव करेंगे और देखेंगे कौन जीत सकता है। मान लीजिए ये जीरो यहाँ पे नहीं था, मान लीजिए ये जीरो नहीं था यहाँ पे, और आपको खेलना है, मतलब यू आर गोइंग टू प्ले दिस गेम, एंड दिस जीरो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दिस जीरो इज दैट। And if you have to play now, where will you place this zero? Will you place it this place or somewhere else? अगर suppose if I'm playing this game and this zero is not here, definitely I'm going to play this zero here. क्यों? Because I know that cross is playing this. Cross can win this. So that means one thing is very clear that this zero was not placed at the last. ये पक्का है कि ये वाला जीरो जो है ना, ये लास्ट में नहीं खेला गया, कभी भी खेला गया गेम में मुझे नहीं मालूम, लेकिन लास्ट में तो नहीं खेला गया। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर अगर मैं ये वाला जीरो रिमूव करता हूँ, अगर मैं ये वाला जीरो रिमूव करता हूँ एंड नाउ मेरे से पूछा जाए मुझे गेम खेलना है, तो मैं कहाँ से जीरो प्लेस करूंगा? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्लेस दिस जीरो है, बिकॉज अगेन वही क्रॉस का प्रॉब्लम, राइट। तो ये भी पक्का है कि जीरो ने ये वाला चांस नहीं खेला, राइट। जीरो ने ये वाली चीज लास्ट में नहीं खेली। इज दैट ओके? जीरो ने ये लास्ट में नहीं खेला, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ ये वाला जीरो क्या लास्ट में खेला गया था? एक मिनट, बैक कॉल, या क्या ये वाला जीरो हम लास्ट में कर सकते हैं क्या? ये वाला जीरो, क्या ये जीरो लास्ट में हो सकता है? अगर जीरो ने ये वाला जीरो लास्ट में किया ना, देन तो फिर उसको गेम ही नहीं खेलनी आती। क्यों? बिकॉज वो यहाँ जीरो प्लेस करके गेम जीत सकता है। So that means what I get to know is that zero did not play the last chance. If zero did not play the last chance, then cross must have played. अगर क्रॉस ने वो चांस खेला होगा तो जीरो जीतेगा। बट क्या, कैसे पता लगा? वैसे ही बारी बारी से अब हम क्रॉस के साथ भी करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी, शायद नो वन इज गोइंग टू विन, अगर क्रॉस की तरफ से भी कोई हमें पक्का पक्का सोल्यूशन नहीं मिलता है। एम आई क्लियर विद दिस? राइट। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये वाला क्रॉस हटाता हूँ, ये वाला क्रॉस हटाता हूँ, ये वाला क्रॉस हटाता हूँ। अगर मैं ये वाला क्रॉस हटाता हूँ, अब हम अगर क्रॉस है तो मैं कहाँ प्लेस करने वाला हूँ? अगर मैं ये क्रॉस यहाँ पे नहीं करूंगा, मतलब ये वाला क्रॉस अगर आखिरी में नहीं चल सकता वो, क्यों? क्योंकि अगर ये होता तो दैट वो क्रॉस वुड हैव प्लेस्ड हियर, वो जीरो को बनाने से रोकता, ट्रिपलेट बनाने से रोकता। तो वन थिंग इज वेरी श्योर दैट ये वाला चांस आखिरी वाला नहीं था। एम आई क्लियर विद दिस? ये वाला चांस आखिरी वाला नहीं था, ठीक है। ऐसे सोचो, क्या ये वाला जीरो क्रॉस हो सकता है आखिरी वाला? अगर ये क्रॉस यहाँ पे प्लेस करता ना, नहीं ये वाला भी आखिरी नहीं हो सकता, वो ये वाला प्लेस यहाँ करता। एम आई क्लियर विद दिस? अब आओ ये वाला क्रॉस, अब अगर ये वाला क्रॉस हम खेलेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये वाला क्रॉस से आखिरी में प्लेस करना था। आई थिंक देयर इज समथिंग
या क्या ये वाला क्रॉस आखिरी में रह सकता है? बिल्कुल। अब मान लीजिए, आई थिंक देयर मोर पीपल जॉइंट। या हेलो, हेलो प्रियांशु, हेलो शुभांशु, हेलो जीवी। आई थिंक ऑल शुड पार्टिसिपेट इन दिस गेम, थोड़ा लेट हो गया। No worries, no worries, no worries. The question is who will win. The question says who will win. The question is asking कौन जीतने वाला है। ठीक है। और चलिए, अब थोड़ा सा सेशन रिकॉर्डिंग में चला गया है तो कोई बात नहीं। अब अगर ये वाला क्रॉस यहाँ नहीं होता एंड यू हैव टू प्ले द क्रॉस, अभी आप कहाँ खेलोगे? अब समवन विल से सर आई विल प्ले इन द सेंटर, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से खेल दूंगा, जीरो जीरो विल यहाँ से प्ले विन कर लेगा। समवन विल से सर आई विल स्टॉप जीरो फ्रॉम हेयर, तो जीरो यहाँ से जीतेगा। तो अभी क्या है? क्रॉस हैज बीन, क्रॉस हैज बीन व्हाट? चेकमेट। क्रॉस क्या हो गया यहाँ पे? चेकमेट हो गया। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? क्रॉस यहाँ पे क्या हो गया? चेकमेट हो गया। एम आई क्लियर विद दिस? तो अगर क्रॉस यहाँ पे चेकमेट हो गया तो कौन जीतने वाला है? जीरो जीतने वाला है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस क्या था? बिफोर आई स्टार्टेड एनीथिंग, बिफोर आई इंट्रोड्यूस्ड अबाउट आई मीन योर इंट्रोडक्शन या मेरी इंट्रोडक्शन, व्हाट वाज द रीजन टू डू दिस क्वेश्चन एट द स्टार्ट वाज दैट दिस इज कैट। जहाँ पे पुराने मेथड्स लगेंगे, नो डाउट, फॉर्मूलाज लगेंगे, नो डाउट, उसकी नॉलेज लगेगी, नो डाउट, बट उससे कहीं ज्यादा ऊपर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्ट्रैटेजी, द वे यू सॉल्व द क्वेश्चन, वो ज्यादा लगेगा। पहली बार देखने में क्वेश्चन ऐसा फीलिंग आएगा कि क्वेश्चन थोड़ा बकवास लग रहा है, या ऐसी फीलिंग आएगी कि क्वेश्चन में कोई डाटा मिसिंग है, या ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर इफ यू लुक एट दैट क्वेश्चन एट वेरी कीन, एट वेरी नॉर्मल तरीके से नहीं देखे, थोड़ा सा हट के देखोगे, जस्ट एट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, you will find that it is a brilliant question altogether. So this is what the purpose is, to keep this question at the start. Just to give you, this is quantitative aptitude. It's not all about formulas. It's about your strategy. It's about your confidence. What the way you approach the question, how you take it. Easy nahi hai cat, but difficult bhi nahi hai. Am I clear with this? Yes, Shubhranshu, Sindhu ji, Shreya, Priyanshu. Do you get this? Do you get this question? Right? चलिए अभी हम आगे चलते हैं। My name is Ajay Jindal. I've done my BTech in mechanical and masters in management in finance. तो अभी आप सोच लोगे फाइनेंस पढ़ा के क्वांट की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। हाँ, आई एम टीचिंग क्वांट फ्रॉम लास्ट 15 years and I'm training students for PG entrance examinations all way long. अभी आप बोलेंगे 2009 है तो 15 years कैसे हो? I was teaching before that also. After that I went into the management courses. Around 500 students I teach every year, and the highest score which my students have ever got is around 99.79 with God's grace in QA, with 99.4 in CAT DLR. Every round I got around 4 to 8 depending upon the batch size, and I am admits and around like 15 good admits in the good B schools, right? Fine. Thank you, sir, for understanding the question, but थोड़ा quick रहने का आंसर करने में चीज़ है, right? दिस इज नॉट स्मॉल थिंग, आप थोड़ा इसको बाद में देख लीजिएगा। बाकी जब हम पढ़ेंगे, गेट टू नो योर स्टडी विद मी, एंड फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा और पता लग जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर देन स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड, राइट? सो दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू से अबाउट माय सेल्फ। लेट्स नाउ लर्न अबाउट कैट, जो मेन पर्पस है आज के टॉपिक का। लेट्स फोकस ऑन दिस, अंडरस्टैंड दिस, समझे, कॉपी पेन से लेके बैठे, एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन द की पॉइंट्स। और सेशन के बाद एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिव्यू द सेशन, आपने क्या सीखा, राइट? हो सकता है आज की सेशन थोड़ा ओरिएंटेशन के ऊपर है, बट एवरी सेशन व्हिच कम्स आफ्टर दैट वुड हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू व्हिच इज हेल्पफुल टू क्रैक द क्रैक। सो देयर इज समथिंग व्हिच वन थिंग आई विल से इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड की नोट्स। ठीक है। थोड़ा मैथ्स वाला सर हूं ना, तो थोड़ा सा फोकस रहेगा कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स, है ना? क्योंकि कई बार बोरिंग होता है मैथ। समवन हैज लेफ्ट मैथ्स एट स्कूल लेवल, सब किसी ने 12th में ग्रेड में छोड़ा, किसी ने 10th ग्रेड में छोड़ा, है ना? लेकिन ऑल्दो कैट एक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, एकेडमिक डाइवर्सिटी है कैट के अंदर। इफ यू फ्रॉम लेट्स से साइंस बैकग्राउंड,
आपका जो बेंचमार्क है डिफरेंट रहेगा। इफ यू आर फ्रॉम दी आर्ट्स बैकग्राउंड तो आपका डिफरेंट रहेगा, इफ यू आर फ्रॉम दी कॉमर्स बैकग्राउंड तो आपका डिफरेंट रहेगा। तो आपकी बेसिकली डिफरेंट से मतलब कि पेपर डिफरेंट ही होगा, पेपर तो सेम ही होगा, क्वेश्चंस भी सेम रहेंगे, सब कुछ सेम होगा। आपके जो कट ऑफ लेवल्स हैं, जो आपके जो स्कोरिंग लेवल बनेगा फॉर द कॉल लेटर्स आफ्टर यू गिव द एग्जाम, वो डिफरेंट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन योर academic category. ठीक है। And from this one, info most of the syllabus will comprise of the topics taught in school to 10th grade. तो हमारा जो सिलेबस है ना बेटा, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10th ग्रेड को ही कंप्राइज करता है। तो इसका मतलब क्या हम स्कूल फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, क्या हम स्कूल फैकल्टीज के साथ कैट क्रैक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है स्कूल फैकल्टीज कैन नॉट हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू ओनली विद द फॉर्मूलाज, दे कुड हेल्प यू ओनली विद लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट कैट में एक और चीज चाहिए होती है, चुस्ती फुर्ती, और साथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो शॉर्टकट्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। वो शॉर्टकट्स जो चाहिए, बैक तरीके से चलना, जैसे हमने वो स्लाइड में देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, ऑप्शंस को यूज करना, ठीक है, थोड़ा बैकवर्ड चलना, या कहीं पे कुछ जो कैलकुलेशन है उसको अवॉइड करके सीधा जो मेन मुद्दे की बात है उसके ऊपर बात करना, ये सब चीजें भी हमें सेशंस के अंदर सीखनी पड़ेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो स्कूल में शायद मिस की जाती है हमारे यहाँ, स्कूल के लिए शायद बनी ही नहीं है, दैट इज हाउ टू लीव द क्वेश्चन, something called how to leave the question. Means I know how to solve the question, but still I will not solve it. Why? Because I have another question which could take half of the time of the question which I'm doing that. एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में पड़ा है जो मुझे आधा वक्त लगने वाला है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा rather than focusing on a question which is going to consume my 5 minutes. क्योंकि पेपर में पूरा पेपर करने का ही नहीं है, पूरा पेपर करने का इनफैक्ट समय भी नहीं है हमारे पास। Am I clear with this? अगर पूरा समय करने के लिए समय ही नहीं है तो फिर उतना क्वेश्चन करो जितना हम कर सकते हैं, और उतना इतना सही करो कि उस पर गलती का कोई चांस ही नहीं है मेरे पास। आई गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज माई दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो फिर एक चीज और, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स को कोई सिलेबस भी नहीं है, मेन फोकस ऑफ दिस साइड कोई सिलेबस भी नहीं है, तो फिर हम क्या पढ़ाने वाले हैं? जब सिलेबस नहीं है, स्कूल का सिलेबस है, तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो क्योंकि जो कैट है बहुत सालों से हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, सिलेबस कैन बी मैप्ड आउट रिगार्डिंग द टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमने मैपिंग किया है पिछले सालों से जो पेपर हो रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं, किस एरिया पे फोकस किया गया है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट या कॉन्सेप्चुअली रिपीट होते हैं, कौन सी चीजों के ऊपर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल उसी टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। मैपिंग इज डन फॉर लास्ट 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, फिर ये पार्ट बनता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट जब पे जाओगे ancad.ac.in, उस पे कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ही नहीं है सीएटी का। एम आई क्लियर विद दिस? तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेंस है आपकी स्मार्टनेस की, आपकी कॉन्सेंट्रेशन की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वर, गुड रीडर, गुड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन सॉल्विंग ऑल्सो। वो तो एक पार्ट है ही है जो स्कूल्स में भी हम सीखते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? आई हैव सीन मैनी पीपल ज्वाइनिंग। यस सचिन, कैन यू हियर मी? शुभ्रांशु, एक थोड़ा सा हाईफाई दे दो यार, मैं अकेला बोल ही जा रहा हूँ। कोई कुछ थोड़ा सा कुछ कुछ लिख के बताओ मुझे कि सर आई एम फीलिंग राइट, आई वांट टू आस्क दिस, राइट? I'm speaking to myself only. Sheikh Mohammed, yes, Yash, Shreya, Sachin, Ake. Just a motivation, I think, for me also. As you guys are listening, we are not sitting only in the idle in the session. Yes, good Adesh, nice. कुछ भी, गुड गुड शेख, गुड। ठीक है। या इस स्लाइड से कोई क्वेरी अबाउट द सिलेबस, रिगार्डिंग सिलेबस? सिलेबस मैं बताऊंगा जो पेपर में आने वाला, भी अगली स्लाइड पे बताऊंगा, लेकिन इतना क्लियर है कि प्रिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में कहीं पे भी नहीं है सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट। इज दैट क्लियर? बट इतना जरूर है कि सिलेबस 10th को नहीं पार करने वाला, राइट? बट लेवल 10th नहीं होने वाला फॉर श्योर। अगर सिलेबस भले 10th को पार ना, यस यस, somebody has raised the hand. Yes, Shreya, you want to ask something, or you just say that sir, yes, I'm listening, sir, that's why you raised the hand? Yeah, sure, you can switch on your mic, I mean, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है, बैकग्राउंड नॉइजेस बंद होंगे।
आप अपना माइक ऑन करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, कम ऑन। ओके, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, राइट। बट क्वेश्चंस होने चाहिए आप सबके पास, आई वुड बिलीव, है ना? यू एज अ ग्रोन अप पीपल यू शुड हैव गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम द फैकल्टी, राइट? That keeps me lively as well. It's not that you are always checking me, that if you should not ask me that you're checking my credibility, ऐसा कुछ नहीं है, but you should have a good number of questions also to ask. So based on the above, one can infer the CAT syllabus. This is in front of you. ये है CAT का syllabus, मोटा मोटा 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। कई 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 बुक्स में कई जगह पे नंबर्स को हम अलग कर देते हैं, लेकिन हमने इसको अलजेब्रा के अंदर ही रखा हुआ है। बट समवेयर वी कैन कीप दैट नंबर्स इज अनदर सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट जरूरी नहीं है। डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, बेस सिस्टम, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको बहुत लॉजिक सीखने को मिलेंगे। रिमाइंडर्स, आज तक हम खेलते हैं क्वेश्चंस के साथ, बट इसको इसके साथ डिवाइड करो, व्हाट इज द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू प्ले विद द रिमाइंडर्स। आप सोचोगे रिमाइंडर्स के साथ क्या क्वेश्चन बनते हैं? अरे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन बनते हैं। बेस सिस्टम थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप बेस टॉपिक चला जाता है, लेकिन इतना वो डिफिकल्ट पार्ट से नहीं हमें करना। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें करनी है उसके अंदर, जो कि हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं लर्न करने में। फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम एंड एप्लीकेशन, इस टॉपिक को हमने स्कूल्स में कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं है। हमने इसके सिर्फ फॉर्मूलाज किए और उसको छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस आर ह्यूज एंड दैट आर समथिंग वेरी ग्रेट एप्लीकेशंस, राइट? बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को करने के लिए। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज समथिंग व्हिच वी हेट अपॉन, राइट? स्कूल्स में मुझे याद है बहुत गुस्सा आता था, बहुत से मेरे फ्रेंड्स को जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, यार ये क्या है यार, कब क्या क्लियर आएगा, क्या करने का है, कब करने का। आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। 15 साल से कर रहा हूँ, तुम श्योर लाइक आई ट्राई टू डू इट फॉर यू गाइस आल्सो, राइट? Inequalities again, equations and inequality, equals with something equal to, inequality जहाँ पे सिंपल्स कुछ ऐसा यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। एंड लास्टली फंक्शंस एंड ग्राफ्स। दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है टॉपिक। the thing is how you understand these topics matter. डिफिकल्टी होना या ना होना इस पे डिपेंड करता है कि आप उसकी शुरुआत में टॉपिक को कैसे पकड़ते हो, ठीक है? जैसे इस पे तो हमें वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नहीं मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसमें ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, राइट? दिस इज समथिंग फेवरेट ऑफ ऑल। ये चैप्टर तो सबका फेवरेट होता है, बहुत कम लोग मिलते हैं जो मुझे मिलते हैं, बहुत बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको ये अच्छे नहीं लगते। परसेंटेज, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सड एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, लीनियर सर्कुलर रेसिस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अरे क्लॉक कैलेंडर्स में क्या होता है? अरे बहुत कुछ will जो चीज आप छोड़ चुके हैं, एनालॉग वॉचेस को सीखेंगे हम। आजकल सब लोग डिजिटल पे आ गए, स्मार्ट वॉचेस पे आ गए, बट वी आर गोइंग टू री इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एनालॉग वॉचेस। यस, उस पे बहुत क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कैलेंडर्स इज समथिंग वी आर गोइंग टू प्ले लाइक इन न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री। हम डेट देख के, उस तारीख देख के उसका दिन बताने वाले हैं, ठीक है? समथिंग कि तू भाई इस तारीख को अगर तू पैदा हुआ तो उस दिन क्या था, वाज इट अ मंडे और अ ट्यूसडे और अ वेडनेसडे, समथिंग लाइक ऑफ दिस। आई टीच यू दैट ऑन समथिंग simple interest, compound interest. I'll teach you this topic like anything. You'll love this topic after learn the way I'll tell you about simple interest, compound interest. आप बोलोगे इससे अच्छा टॉपिक ही कोई नहीं। स्टॉक्स एंड शेयर्स, इसके बारे में सुना है, ये कोई +1 +2 का टॉपिक नहीं है, कोई 10th का टॉपिक नहीं है, बट समथिंग कॉल्ड वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक फॉर टुडे, राइट? अभी एलआईसी का भी लिस्टिंग हुआ है, राइट? तो स्टॉक्स एंड शेयर्स के ऊपर अभी सीखेंगे, राइट? सो ये टॉपिक सबको आते होंगे। व्हाट इज आई एम गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक? आई ट्राई टू रिड्यूस मैक्सिमम फॉर्मूलाज। क्या बोला मैंने? आई एम गोइंग टू रिड्यूस मैक्सिमम फॉर्मूलाज। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एवरीथिंग इज समथिंग ऑन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब क्या है? ये सब कुछ एबीसी है। कैसा? प्रॉफिट लगाया सीपी पे तो एसपी मिलेगा, डिस्काउंट लगाया एमटी पे तो एसपी मिलेगा, प्रॉफिट लगाया सीपी पे तो एसपी मिलेगा, ठीक है? स्पीड लगाया टाइम के साथ तो डिस्टेंस मिलेगा। तो सब कुछ एबीसी है, वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक्स। तो व्हाट इज एबीसी, मैं क्या एबीसी बोलना चाहता हूँ? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है, एक बेस वैल्यू रहती है, एक रिजल्टेंट वैल्यू रहती है। आई विल टीच यू व्हाट दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज, हाउ वी कैन अवॉइड फॉर्मुलाज इन परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस रेशियो को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। मिक्सचर एलिगेशन हेल्प टू मेक रिड्यूस मोर कैलकुलेशन, विल सी फ्यू क्वेश्चंस इन टुडे आल्सो, ठीक है? तो अर्थमेटिक इज समथिंग व्हिच इज लव्ड बाय एनीवन, राइट? ज्योमेट्री
ये 50-50 है। 50% ऑफ द पीपल लव टू प्ले विद ज्योमेट्री, 50% थोड़ा उनका कई बार आईक्यू लेवल देखने का इतना अच्छा नहीं रहता है। बट if you're thorough with all these topics का geometrical constructions, if you're thorough with how the lines और angles का definitions क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों का मैं स्कूल में क्या देखता हूँ कि they don't have learned the basics of the figures, क्योंकि फिगर्स में सब कुछ है, फिगर्स को देख के बहुत कुछ मिल जाता है। तो समटाइम्स वी डोंट इवन फोकस ऑन फिगर्स एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द थ्योरम्स। थ्योरम्स चाहिए मेरे को, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर फिगर्स को पढ़ना आता है, उसकी पहचान पता है, उनके डायगोनल्स के बारे में पता है, आपको आउटर एंगल्स के बारे में पता है, उनके रिलेशंस के बारे में आप निकाल सकते हो मौके पे मोमेंटली, थिंग्स आर इन योर किटी, राइट, थिंग्स आर इन योर पॉकेट। एडवांस मैथ्स, ये समथिंग इज वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल टॉपिक है, मजा आने वाला आपको। और अगर ये टॉपिक नहीं करेंगे तो फिर एमबीए करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन मीन्स द नंबर ऑफ काउंटिंग वेज। तो एमबीए के अंदर इफ यू गोइंग टू बी एट सम स्ट्रेटेजिकल पोजीशन वर्किंग, तो आपको हमेशा हर मतलब डिसाइड करना है ए बी सी डी में से कौन सा लेना है। चारों ठीक है, ए बी सी डी चारों ठीक है ऑप्शंस, लेकिन बी में से कौन सा लेना है। बट हम यहाँ पे चुनने नहीं वाले, हम वो तरीके बनाने वाले कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ वर्क कैन बी डन। तो 4 तरीकों से कर सकते हैं, 10 तरीकों से कर सकते हैं, 15 तरीकों से कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं इस चैप्टर को परमुटेशन कॉम्बिनेशन कम बोलता हूँ, काउंटिंग ज्यादा बोलता हूँ, बिकॉज वे काउंट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सम प्रोसेस और समथिंग, सम वर्क और व्हाटएवर, राइट। प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, हमने सीखा हुआ है कितना चांस है किसी काम को करने के लिए। तो उसका यहाँ पे क्या यूसेज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूसेज है। वी आर गोइंग टू प्ले डू विद प्लेइंग कार्ड्स, चेस के साथ हम खेलने वाले हैं, डाइसिस के साथ हम खेलने वाले हैं, कॉइन्स के साथ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बॉक्सेस, बॉल्स, रेड बॉल्स, व्हाइट बॉल्स वाले हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। ग्रुपिंग के ऊपर हम करने वाले हैं काम, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पाथवेज, कितने रास्तों से हम कहीं पे पहुंच सकते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन समथिंग कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल, वे समथिंग कॉल्ड डी अरेंजमेंट्स, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है, समथिंग वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समथिंग विच इज एपीजीपी, ये तो बेटा बहुत जगह हेल्प करेगा, तो इसके ऊपर तो मैं तभी फोकस करूंगा, इवन इन 2 टॉपिक्स के ऊपर। तो ये टॉपिक्स वो है जिनके ऊपर मैंने अभी ज्यादा कमेंटिंग नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे भी थोड़ा कम कमेंट किया, लेकिन कुछ चीजें जो आप समझ सकते हो इस टाइम, बिकॉज आई कुड एक्सपेक्ट कि हम एक थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स भी पढ़ते हैं, तो जो मैंने टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट उन पे किया, जो मुझे लगता है कि इस टाइम आपको थोड़ा बहुत उनके ऊपर फोकस है, ठीक है, तो उनकी मैंने थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी इस टॉपिक के जरिए। अगर आप कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किस टॉपिक के बारे में पूछना चाहो तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना आदेश, आदित्य, अंकुश, आनंद जी, जीवी, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? अरे मैथ्स में नंबर लेने हैं मेरे को, परसेंटाइल क्रिएट करना है, बोरिंग नहीं करना है। यस, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं आगे भी। या सचिन, एनीथिंग यू वांट टू से? या थैंक यू आदित्य, फिर मैं बोरिंग होने भी नहीं दे रहा था, वो जस्ट मैंने देखना था कि तुम रिप्लाई कर रहे हो कि नहीं। या सचिन, योर माइक इज ऑन, यू वांट टू से समथिंग? सचिन, आप कुछ कहना चाहते हो? या नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग? अरे 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 अरे, अरे ओके, नाउ व्हाट इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर क्वांट, हमें चाहिए क्या? मतलब बेसिकली एज अ स्टूडेंट जब मैं भी था, मैं अपने टीचर से पूछता था जब मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी करनी थी कि सर मुझे किन बातों का एट द डे वन ध्यान रखना चाहिए फॉर स्टार्टिंग एनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है कि मुझे लगता है कि आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें ध्यान में क्या है। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस, ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो बहुत काम करने वाली है। इसके अलावा कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कंसिस्टेंसी, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर बुक कीपिंग, और प्रॉपर बुक कीपिंग ही नहीं, ये इस बुकिंग कीपिंग का कोई फायदा नहीं इफ नॉट रिवाइजिंग प्रॉपर। सो रिवाइज रेगुलरली, रिवाइज रेगुलरली। तो ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये आपका कुछ रेगुलर चीज है जो आपको करना है, और ये स्ट्रैटेजी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट। एंड इफ यू आर डूइंग दिस, ठीक है, मुझे याद है राहुल सर ने एक सेशन में कहा था
कि if you are doing with 4 slots of 45 45 45 45 minutes, तो समथिंग विच इज इन योर पॉकेट इज 95 प्लस तो आने वाला है, 95 तो आने वाला है। फिर उसके बाद अपना मौके का सिचुएशन, अपना मौके का हैंडलिंग है। उन्होंने एक सेशन में बहुत अच्छे से गाइड किया था यूट्यूब। आई होप यू मस्ट बी फॉलोइंग रेगुलरली एट क्लास। सो तो उन्होंने कहा था, बहुत से बच्चे कहते हैं सर इतने में हो जाएगा। देन ही आल्सो आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि आप इतना तो करो, इतना करके तो दिखाओ, राइट। तो उतना करना वुड बी आल्सो डिफिकल्ट, राइट। बट अगर आपने वो डिफिकल्टी चैलेंज हाथ में ले लिया ना, अगर वो चीज आपने कर दिया, 45 मिनट्स का पर डे का स्लॉट, नॉट इन क्लास को नहीं लेना है उसमें, क्लास सेपरेट है, दैट सेल्फ स्टडी मोड पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी मोड पे हम बात कर रहे हैं। अगर वो कर लिया ना, थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर हैंड्स। शायद मैं अपने फोटो के पीछे लिखे जा रहा हूँ ना, ठीक है। एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा मार्किंग करता हूँ कि मुझे नहीं लिखना है यहाँ पे। सो सॉरी। यस, राइट। तो अगर आपने उतना कर दिया ना, कंसिस्टेंसी बना दी, तो 95 और साथ में हमारी गाइडेंस तो रहने वाली, नो डाउट। इट्स नॉट दैट गाइस वी आर सेइंग बिकॉज कहने के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, प्लीज फॉर माइंड सेक, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गया इस लाइन में, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होगा। एंड यू कैन बेट अपॉन इट, आई कैन चैलेंज अपॉन। तो मेमोराइज करना है, नो डाउट, बहुत चीजें लर्न करनी है, लेकिन लर्न करने के लिए मेरे पास ऐसा नहीं कि मुझे पेज के पेज रटने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कॉन्सेप्चुअली अपना बहुत माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी मैं हर चीज पे फोकस करने वाला हूँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी कहीं पे टूटी, मीन यू आर सिटिंग फॉर 45 मिनट्स का स्टडी, उस 45 मिनट्स में आपका व्हाट्सएप चला, आपका फोन का रिंगटोन बजा, या आपको ये ध्यान में आया कि मैंने तो उसको फोन करके कोई मैसेज देना था, या घर की बेल बज रही है तो मुझे जाना है, या कुछ, देन इट इज गोइंग टू बी नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन। फिर नहीं उसको बोलते। फिर वो चीज नहीं बोलते कि हम आप पूरे अच्छे से तैयारी करो। 45 मिनट्स मीन्स टोटली इन दैट टॉपिक फॉर 45 मिनट्स। सपोज ये फिर डूइंग इंग्लिश, इफ डूइंग फॉन्ट और वट एवर सब्जेक्ट, 45 मिनट मतलब 45 मिनट्स मीन्स 45 मिनट्स। टाइमर लगा लो चलेगा, बट इतना फाइन ट्यून होना चाहिए। 15-20 दिन के बाद आपको पता है कि अभी 45, अभी 45 का जीरो स्टार्ट हुआ, अभी 45 खत्म होने वाला है। आपको माइंड स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं ऐसा थोड़ी कि बार बार मैं टाइम देख रहा हूँ कि मेरा 2 घंटे का सेशन है, तो वो मुझे एक टाइम पे आके पता लग जाएगा कि मेरा करीबन करीबन 2 घंटा होने वाला है। उतना माइंड सेट है, उतना ही माइंड सेट आपका होना चाहिए जब हम कैट का तैयारी कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू, आपका जो जो सिंक्रोनाइजेशन है ब्रेन का, वो अपने आप हो जाना चाहिए। जैसे कई लोगों को सुबह 7 o'clock अपने आप जो है कि वो उठ जाते हैं नींद से, क्योंकि उनका माइंड सेटअप ही है, उनका इतना ब्रेन ही उनके लिए अलार्म है। तो योर ब्रेन शुड वर्क फॉर यू एज अलार्म। और ये बुक कीपिंग है ना, रोज का रोज नोट्स बनाओ। आज मान लीजिए आई एम टीचिंग सम टॉपिक ऑन परसेंटेजेस, दैट्स इट, राइट। So if I'm teaching something on present percentages, I would be teaching you some 7 to 8 concepts there, right? तो वो तभी के तभी आपके की नोट्स में चले जाने चाहिए, आपकी बुक कीपिंग में चले जाने चाहिए वो 7-8 थिंग्स जो आज आपने नहीं लर्न करी। उसके ऊपर एग्जांपल्स मत लिखिए, बस वो 7-8 चीजें लिखिए। दैट शुड बी अ जिस्ट, दैट शुड बी अ समरी ऑफ दैट सेशन व्हिच यू शुड कीप इन योर नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग रेगुलरली ऑन डेली बेसिस, राइट। तो बस दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स फोकस ऑन ऑल दिस 4 strategy points one by one. Memorizing में, this is something which I want from you as a quant faculty. इसके ऊपर मेरे पास कोई, आपके पास वो नहीं है, मार्जिन भी नहीं है, 1% का मार्जिन भी नहीं। आपको टेबल्स 20 तक कम से कम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द टेबल ऑफ 19, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, टेबल हो गया 19 का। मैंने इवन ये भी नहीं बोला 19 वन का, 19 टू का, 19 थ्री का, ऐसा भी नहीं बोला मैं। सीधा सीधा बोला मैंने 19, 38, 57, 76। हाँ, कई लोग कहेंगे सर इसमें मेरे को स्ट्रैटेजी दिख रहा है, एक कम हो रहा है, दो का गैप आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाना, प्योर रट्टाफिकेशन चाहिए मेरे को। मुझे भी दिखाई देता है यहाँ से 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 1 कम हो रहा है, नहीं करना है मेरे को, नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब बच्चों वाली बात है, आई डोंट वांट टू डू इट। लर्न मीन्स लर्न दिस टेबल, मेमोराइज दिस लाइक एनीथिंग। कोई मोमेंटली पूछ ले क्या होता है, अपने को आना चाहिए। उसका तरीका बताता हूँ क्या करो। अभी पहले वो बहुत मुश्किल रहता है ना लर्न करना, तो उसके लिए क्या करो ना, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रैंडमली फिगर्स लिखो, 2, 5, कुछ भी मन में आएगा, ठीक है, 3, 4, ऐसा करके लिखो, और साइड में लिखो टेबल। जैसे मान लो 19 का टेबल रिवाइज करना, तो यहाँ क्विकली सोचो 19 टू 30 है ना, 19 5 क्या होने वाला है। अब दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कुछ तरीका बनाओगे। अच्छा, पीछे 5 आता था, तो 5 9 का 45 रहता, तो जो मैंने लर्न किया तो 19, 38, 57, 76, 95 आया था।
तो ऐसे करके होगा क्या, थोड़ा तो नहीं लगेगा स्टार्ट में, नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद जो स्पीड बढ़ेगा ना वो बहुत तेज होने वाला है। ठीक है, थोड़ा यूनिट डिजिट से गेम बनाओ कि 937 आने वाला तो 57 रहेगा, 4936 आने वाला तो 76 रहेगा, मतलब 36 कैसे, 9 और 4 तो पीछे 6 आने वाला है। तो इस तरह से अब कुछ नेक्स्ट टेबल लिख लो कोई, ठीक है 18 का टेबल लिख लो, 17 का। तो यू विल स्टार्ट मेकिंग सम स्ट्रैटेजी, और फिर से ऐसा रिवाइज करो, एंड यू कैन डू दिस सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, बीच में कभी बोर हो रहे हो, तो दिस थिंग्स कुड हेल्प यू टू लर्न टेबल्स लाइक एनीथिंग। ठीक है, फिर भी नहीं हेल्प करता ना, फिर मैं तुम्हें काम करूंगा, फिर मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और मेरे सामने 50 टाइम्स लिखो इसको। वो ठीक है। सही है क्या, तो सर क्या यार, तो पहले हंसाते हो फिर बाद में रुलाते हो, 50 बार कौन लिखेगा यार। जिसको किसको आई एम एडमिशन चाहिए वो लिखेगा, सबको चाहिए आई एम एडमिशन। अंशुल, आदेश, आदित्य, यू वांट एन आई एम एडमिशन? कमाल है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। सोच रहे हो क्या हम जाएंगे नहीं जाए, कि जाना ही जाना है? कम ऑन, यू हैव टू हैव अ गुड मोटिव, तभी पढ़ा जाएगा। स्ट्रेंज, सिर्फ एक ने रिप्लाई किया, यस सर आई वांट टू गो टू आईएम्स, बाकी लोग को नहीं जाना है कि कुछ और मोटिव है, किसी और कॉलेज, एमडीआई, एफएमएस, कोई और कॉलेज, एमआई, एमटी, और नीचे आओ, नहीं आना यार, इतने पे जाना है। एक्सेल राइज इन भुवनेश्वर, यू हैव टू गो फॉर दैट कॉलेजेस। या वेरी गुड श्रेया, तो श्रेया एफएम में जाने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा भाई। नहीं, मुझे भी भेजना आपको आईएमएस, तो आई वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। यस, गुड गुड। स्केल्स टिल 35, यू हैव टू लर्न स्केल्स टिल 35, फिर से पूरा पूरा लर्न होना चाहिए, पूरा लर्न होना चाहिए। अगर मैं अभी आपको सुनाऊं ना तो आप बोलोगे सर सच्ची में आपने कहीं साथ में स्क्रीन तो नहीं खोली हुई? स्क्रीन खोली है लेकिन आप लोगों की चैट देखने के लिए, यस स्क्रीन खोली है लेकिन आपकी चैट देखने के लिए, आंसर सीखने के लिए नहीं। समझ क्लियर विद दिस? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये अभी जैसे मैं 11 से स्केयर्स बोलने वाला हूँ, तो ठीक है, कैमरे में मेरी नजर है, तो अगर आप अपने फोन पे स्केयर्स खोल के मुझे वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, बस किसी के लिए भी कर सकते हो, 20 टेबल्स भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सब चीजें मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जैसे कुछ लोग टीचर्स होते हैं ना वो स्टूडेंट्स के लिए बोलते रहते हैं, खुद को आधी चीजें भी नहीं आती होती। ऐसा नहीं है, मुझे सारा आता है, बहुत अच्छे से बाय हार्ट आता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा 10 तक के स्केयर्स तो सबको रहते हैं ना, याद रहते हैं, तो सिंपल ये 1 2 3 4 5 6 के स्केयर्स। अगर मैं 11 से स्केयर्स अभी सुनाऊँ ना फास्ट, आप अभी खोल के रखो, आई चैलेंज, मुझे बताना मैं कहीं गलती करी। स्टार्टिंग विद 11 लाइक 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529 576 625 676 759 784 841 900 961 1024 1089 1156 1225 1269 1369 1444 1521 1600। ये 40 तक के स्केयर्स थे। बेटा मेमोराइजिंग, आप बोलोगे सर लर्न किया, हाँ लर्न किया, टॉपिक देखो ना, मेमोराइजिंग सच्ची रट्टा मारा है मैंने। मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद, जिसको इंजीनियर जिसको 2+2 के लिए भी कैलकुलेटर खोलना पड़ता है, उसने रट्टा लगाया है ये। याद है ना इंजीनियरिंग के डेज, एनीवन इंजीनियरिंग सिटिंग है, 2+2 भी हमें डाइसी लगता था, लाइक इट वाज फाइंडिंग अ कॉकरोच इन एन एग, कि हाँ भी देखना कि कहीं कॉकरोच तो नहीं मिल रहा है egg में, वैसा कुछ लगता था कि 2+2 के लिए 4 ही होता है ना, कुछ और तो नहीं रहता, वी यूज्ड टू चेक इट ऑन कैलकुलेटर। तो उस पर्सन, इफ दैट पर्सन, दैट काइंड ऑफ पर्सन आई कैन लर्न दिस, व्हाई कांट यू? यस। और किसके लिए करना है लर्न? अपने लिए करना है, अपने एफएमएस के लिए करना है, अपने आई एम एडमिशन के लिए करना है, अपने पैकेज के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। यू डोंट हैव टू टेल मी दिस दैट सर आई हैव लर्न एंड टेक माय वाइवा एंड गिव माय मार्क्स, आई एम नॉट अ ग्रीन पेन होल्डर, मैं आपको मार्क्स नहीं देने वाला, बट दिस थिंग इज गोइंग टू पे यू बैक इन टर्म्स ऑफ हेवी चंक ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ द गुड कॉलेज, गुड प्लेटफॉर्म्स। क्यूब्स, ऐसा क्यूब्स याद करना है, 20 तक तो करना ही करना, ऊपर जितना कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, 20 तक तो करना ही करना है, विदाउट फेल करना है। और फ्रैक्शंस, समथिंग 1/20, अगर अभी आज के सेशन में विल हैव सम टाइम, आई टीच यू दैट फ्रैक्शंस आल्सो, लेकिन आने वाले सेशन में तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू टीच यू द फ्रैक्शंस, लाइक 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16.67, 1/7 14.28, 1/12.5 परसेंटेज। ये परसेंटेजेस भी लर्न होने चाहिए, मतलब मान लीजिए somebody ask you what is 1/8 into 100, तो ऐसा नहीं मैं कैलकुलेटर खोलने वाला हूँ या कुछ करने वाला, सीधा 12.5% है, राइट? somebody ask me what is 1/12 into 100, right?
So I do directly know that is it is 8.33%, something like this. ये आपको भी आना चाहिए, इवन डेसिमल्स तक आपको आने चाहिए, राइट? सो वी वो मैं बताऊंगा आपको, आई गिव यू ऑल दैट इन राइटिंग, डोंट वरी। नेट पे भी मिल जाएगा, बट आई विल गिव यू इन राइटिंग everything. I'll give you some shortcuts to learn that also, don't worry. But this is something you have to memorize, the first strategy of your preparation. Any doubts? अभी बोलोगे सर क्या फॉर्मूलाज है भाई, फॉर्मूलाज भी लर्न करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो रामबाण है, ये तो करना ही करना है, और ये डीएलआर में भी हेल्प करने वाला। ब्यूटी इज दिस, राइट? एनी क्वेश्चंस देयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क देयर? व्हाट? सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। तो एक अच्छी सी लाइन लिखी है हमने, है ना? लिखते हैं, इंग्लिश वाले लिखते हैं, वैसे मैथ्स वाले कम यूज करते हैं, फिर भी इफ यू वांट टू ब्रेक द रूल्स यू शुड फर्स्ट नो द रूल्स, राइट? हेलो प्रशांत, समथिंग यू वांट टू आस्क प्रशांत? हाय प्रशांत, प्रशांत, okay, right, okay, fine. So if you want to break the rules you should first know the rules. आपको पहले रूल्स जानने जरूरी है बेटा, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा, फॉर्मूला नॉलेज होगा, तभी मैं आपको उसका शॉर्टकट बताने में कामयाब हो पाऊंगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो शॉर्टकट मैं आपके ब्रेन में डालने के लिए कामयाब हूं। लेकिन अगर सीधा मैं बोलूं कि सीधा बस ऐसा शॉर्टकट लर्न कर लीजिए, कैट इज नॉट रूल बेस्ड गेम, कैट इज नॉट रूल बेस्ड गेम, प्लीज माइंड इट। ऐसा नहीं है कि जैसा बोला जाएगा वैसा ही कैट में आने वाला है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, कैट इज अ वेरी वेरी डबल स्वॉट क्वेश्चन, डबल स्वॉट पेपर है, बहुत धीरे से काट देगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा। एक छोटी सी मिस्टेक बताता हूँ जो मेरे से एक बार हुई थी, मुझे याद है, ईयर आई थिंक 2016 और 17। हालांकि उस मिस्टेक के लिए एज अ फैकल्टी मैं मतलब बहुत शर्मिंदा था, बट हुई थी, आई कैनॉट हेल्प इट, होती तो हुई थी, है ना? आई डोंट नो व्हाट वाज द क्वेश्चन एग्जैक्टली। द क्वेश्चन का आंसर था, जैसे मान लीजिए 5 lakhs, क्वेश्चन का जैसे आंसर था 5 lakhs, और वो टीटा क्वेश्चन, टीटा बोले तो टाइप इन द आंसर, तो टाइप इन दी आंसर क्वेश्चन, ठीक है? तो 17 में था शायद। तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स भी याद नहीं, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद नहीं, मैं गलती बता रहा हूँ कि क्या हुई थी मेरे से। तो मुझे फिल करना था इसका आंसर, और ऊपर जो क्वेश्चन था पूछा था टाइप योर आंसर इन लैक्स, है ना? तो मुझे प्रैक्टिकली क्या टाइप करना चाहिए था? सिर्फ 5 5 लाख, मैंने पूरा 5 lakhs टाइप कर दिया, 50000। अभी क्या हुआ? मुझे क्वेश्चन आता था कि नहीं आता? वॉज ए इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट? बताओ। फिर वो क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि आपको पेपर आता था कि नहीं आता था, वो गलत हो गया भाई, गया क्वेश्चन गया, दैट इज रॉन्ग। एंड ऊपर से तो थीटा था तो नेगेटिव बच गया, बट 3 नंबर गॉन। बताइए, 3 नंबर, 3 marks, something that 3 marks is going, is that 3 marks is sometimes a thin line between a 99.99 and 100, sometimes, not always, but sometimes the 3 marks is that important sometimes in CAT, right? सो आपको पूरे अच्छे से पता होने चाहिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको ये चीजें बताने के लिए आपको पहले रूल्स पता होने चाहिए, तभी मैं आपको वो रूल्स ब्रेक करना भी सिखा सकता हूँ, तभी मैं आपको वो शॉर्टकट अप्लाई करना भी सिखा सकता हूँ। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए ताकि पता हो कि फॉर्मूला अवॉइड कैसे करना है। यस प्रशांत, यू वांट टू से समथिंग? या प्रशांत, यू वांट टू से समथिंग? कम ऑन। अच्छा, टीटा मींस क्या होता है? टीटा फैंसी नेम है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। टीटा फैंसी नेम है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। टाइप इन द आंसर। गॉट इट? गॉट इट प्रशांत? तो वो कहते हैं ना, कैलकुलेटर को कैल्सी, लैपटॉप को लैपी, तो हमारा कैट कहता है कि माय स्टूडेंट शुड हैव ऑल द फन। तो हमने भी एक फैंसी नाम रखा, टीटा। अदरवाइज कॉमन मैन लैंग्वेज इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। अभी सही है बेटा, ये होता है, यही होता है एमबीए। एमबीए बस वर्ड्स की गेम है।
राममोहन सर के सेशन देखो समझ में आएगा। ठीक है, तो फैंसी थिंग है, राइट? एनीवे, कमिंग बैक, going through the basic concepts of every topic, understanding the process of solving the question is important. Different areas in want different things. तो ऐसा नहीं है कि all the fun is with the verbal, ऐसा नहीं है, the fun is with maths also, right? तो हर टॉपिक में हर डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है? एल्जेब्रा बोरिंग स्टाइल, फॉर्मूला चाहिए, प्रोसेस चाहिए, कांट हेल्प इट। अर्थमेटिक, यहाँ पे स्मार्टनेस चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए, लेंथी कैलकुलेशन अवॉइड करोगे तो ही मजा आएगा, तो ही बचेगा, वही तभी नंबर आएंगे। नंबर तो लेंथी में भी आएंगे भाई, लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे। अगर 3 क्वेश्चन करने का समय था तो 2 ही कर पाओगे, एक ही कर पाओगे अगर लेंथी कैलकुलेशन करोगे। तो वो सीखने का कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए पहले रूल्स पता है, फिर हम ब्रेक करेंगे, उसको छोटा करें, ठीक है? राइट, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक शॉप पे गया, वहाँ पे मुझे 1000 रुपीज, बहुत छोटी सी, बहुत सी बकवास सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शॉप पे गया, 1000 रुपीज का एक जीन्स पसंद आया, और उस पर डिस्काउंट लिखा था 20% का डिस्काउंट। तो मुझे कितना पे करना है, कोई भी निकालेगा। वो क्या निकालेगा कि 20% ऑफ 100 की 200 का डिस्काउंट मिला, और फिर माइनस करेगा 1000 में से 200, आंसर आएगा 800। अब मेरे जैसा फैकल्टी बोलेगा भाई तेरे को निकालने को बोला था क्या 200, तेरे से पूछा क्या था, तेरे से 800 पूछा था ना। तो पता तो लग रहा है, अगर 20% छोड़ेगा तो 80% देना ना, तो 80% सीधा 100 का 800 होता है ना, क्यों निकाला है 200 भाई? ठीक है, मैंने शायद फिर अपनी फोटो के पीछे लिखा, सो सॉरी। ठीक है, 1 मिनट दो कि क्या मैं थोड़ा मार्किंग करूँ क्या अपनी स्क्रीन में? जस्ट लेट मी अवॉइड दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। आई एम राइटिंग इट ऑन माय फोटो। या, थैंक यू। डन सम मार्क। या, थैंक यू। यस। सो अभी समझ में आया, बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम छोटा छोटा स्टेप बचाएंगे ना, दैट कुड कन्वर्ट इनटू मिनट्स, एंड मिनट्स कैन कन्वर्ट इनटू लाइक समथिंग। तो आवर में नहीं बदलने वाला है, इतना भी लंबा नहीं जाना, 40 मिनट के पेपर था, तो मिनट ही बहुत, मिनट तक ही रुकेंगे। तो सेकंड इज गोइंग टू क्रिएट मिनट, ठीक है? मिनट्स इज गोइंग टू मेक आवर, बट पेपर ही 1 घंटे का भाई, मैथ्स का पेपर 40 मिनट का है, ठीक है? तो उसके बारे में भी आई टेल यू समथिंग इन द सेशन। तो अवॉइड करती कैलकुलेशंस, राइट? ज्योमेट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिगर्स एंड थ्योरम, मैंने शुरू में भी बताया, तो उसमें मुझे अपनी आंखें बहुत अच्छी चाहिए, 6x6। चश्मे मेरे भी लगे हैं भाई, लेकिन चश्मों के साथ अच्छा दिखना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्टडी द ग्राफ्स एंड फिगर्स, एंड यू शुड नो कि कैसे देखना है, कितना एंगल्स पे है, कौन सी फिगर कहाँ से मैच होती है, पैरेलल लाइन कहाँ पे बन रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बन रहा है, वो दिखना चाहिए। पता होना जरूरी नहीं है, दिखना भी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में कौन से 2 एंगल्स मैच हो रहे हैं। थ्योरम आती है, प्रैक्टिकली पकड़ में नहीं आई तो मेरे को क्या जाना कि तुम्हें आती है या नहीं आती। इट इज समथिंग लाइक टाइपिंग अ 5 और अ 5 लाइक, तो मिस्टेक हो गई है, तो तुम्हें आता है तो मैं क्या करूँ, तुमने किया तो गलत ना, जबकि गलत भी कुछ नहीं किया, टाइप ही गलत किया बस। उसको तो नहीं मालूम ना कि तुम क्या करना चाहते थे। ही डज नॉट हैव दैट एक्सरे इन योर एंड ही रीड यू, राइट? मिस्टेक इज मिस्टेक, राइट? एडवांस मैथ्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल सिंपल सिचुएशंस को, ठीक है? और इसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करे, इसमें लैंग्वेज बहुत मैटर, लैंग्वेज हालांकि हर जगह मैटर करेगी, लेकिन यहाँ तो मतलब अल्टीमेट है यार, एडवांस मैथ्स में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो है ही लैंग्वेज, ठीक है? कहीं पे उसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है किसी और सिचुएशन। अब तुम, हर चीज का मैं एग्जांपल अभी नहीं दे पाऊंगा, सो सॉरी, आई नो आप हर चीज को समझना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज फिर हमें पेड़ भी रखनी चाहिए, नहीं? सब कुछ फ्री दे देंगे तो फिर तुम लोग पढ़ोगे कैसे, हम भी पढ़ाएंगे कैसे? तो जानने के लिए आपको कुछ आज के सेशन में भी हम बताएंगे कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट? अभी पढ़ते हैं बाद में से, राइट? तो hence it's necessary that the student has a holistical approach towards this test area, right? तो हर चीज फ्री मत ढूंढना यार, फ्री देंगे हम बहुत कुछ, लेकिन हर चीज फ्री मत ढूंढना, हमें भी पेट भरना, राइट? एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट, मेमोराइजिंग, दो चीजों पे फोकस किया। नाउ वी कमिंग टू प्रैक्टिस एंड वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस। प्रैक्टिस, after mastering the theoretical aspects of any topic, a student should solve as many questions as possible. ऑब्वियसली यार, वो तो है ही है, वो तो मैथ का बचपन से थंब रूल है, ठीक है?
कि किताबें काली करनी पड़ती है, एग्जैक्टली किताबें काली करनी पड़ती है, बट यहाँ पे ना एक छोटा सा और अच्छी चीज है, क्वेश्चन बनाना, या मैं इसको कई बार बोलता हूँ क्वेश्चन बिगाड़ना। मैंने लिखा नहीं, वो लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी लिख देता हूँ बिगाड़। मतलब क्या है ना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, जैसे अभी मैंने वो क्वेश्चन पूछा कि 1000 पे 20% का डिस्काउंट दिया। आप उस पर और गेम खेलो कि मान लो सर क्वेश्चन होता कि हमने पहले उसको अप्रिसिएशन दिया 20% का और फिर बढ़ी हुई चीज को फिर 20% घटाया, तो अभी मुझे कितना पे करना है। तो क्वेश्चन बिगाड़ा नहीं, उसमें बिगाड़ना इज जस्ट अ फैंसी नेम अगेन। व्हाट आई एम सेइंग इज इम्प्रोविजेशन करना, उसमें उसमें थोड़ा और सोचना कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट होगा तो हम कैसे सोचेंगे। जब आप वो ट्विस्ट लगाने लग जाओगे, वो क्वेश्चन को बनाने लग जाओगे, तो सॉल्व होने का जो चांस है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। बिकॉज आप जो एक एक टॉपिक बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द पैराग्राफ, या व्हाट ऑथर वांट्स टू से, आप सीखते हो ऐसा कुछ आरसी में, है ना। तो यहाँ पे भी मैथ्स में अगर वो वाली फिलॉसफी लगाई ना कि ऑथर को समझने लगे आपने वो क्वेश्चन में वो कहाँ तक जा रहा है, वो कैसे पूछ रहा है, द थिंग्स कुड बी समथिंग वेरी इजी फॉर यू इन क्लास, राइट। समझ रहे हो, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ना इतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप क्वेश्चन को बनाओ थोड़ा बिगाड़ो, बने हुए क्वेश्चन को थोड़ा बिगाड़ के उसमें कुछ इम्प्रोविजेशन लेके आओ, उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेस लेके, उसमें कुछ चेंजेस लेके आओ, एंड देन यू रीफ्रेम अ क्वेश्चन विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर। फिगर्स भले ही मत लो, लेकिन उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करो कि ऐसा रहता तो क्या करते, वैसा रहता तो क्या करते। और क्वेश्चन भी करो, फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप बनाओ, टीचर्स के साथ भी डिस्कस करो, हम लोगों के साथ डिस्कस करो कि सर जो मैंने कुछ रूल बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ, बचपन में आई वाज डूइंग सम, ठीक है, हमें सिखाया गया, वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड किड आई सपोज। तो मैंने बैठे बैठे ना 12 into 12 को मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाली। अब देखो यार, फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के लिए इसको मल्टीप्लाई करना भी एक चैलेंज था, तुम्हारे लिए भी रहा हो। तो मैंने इसको ना एक स्ट्रैटेजी बनाया। देखो 2 into 2 4, 2 + 2 4, 1 into 1 तो 144। और मजे की बात ये थी ना, सब जगह लग गया। मैंने फिर ट्राई किया 14 के साथ, तो लग गया। कैसे, क्या होता है, 4 into 4 16, फिर मैंने सोचा वन का क्या करना है, वन कैरी कर देंगे, 4 + 4 8 + 1 9, 1 1 1 196। वाओ, टाइम कितना बच गया मेरा। क्यों, एज अ थिंक एज अ किड ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, उसके लिए पूरा 2 स्टेप बचा है, पूरा 2 स्टेप बचा है, जस्ट थिंक, सेविंग 2 steps पर स्टैंडर्ड ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड किड, कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। कैन यू बिलीव दिस। अभी के लिए तो बकवास है ये, नो डाउट, अभी के लिए तो आप बोलोगे क्या है सर, क्या क्या पढ़ा रहे हो, बट थिंक एज अ, थिंक अ फोर्थ स्टैंडर्ड किड, what a big great achievement it was। और मजे की बात बताऊं, once what happened, I shared this with one of my friends, इसमें मैंने बोला ग्रुप्स बनाओ। I shared this one of with my friends। उसने क्या किया, वो अगले दिन आया, वो भी मेरे साथ एक दिमाग खराब बंदा था मैथ्स का। तो वो कहता, अजय आई टेल यू वन थिंग मोर। हाँ बोल। तो कहता 21 21 भी खेलता है। मैं कहा अच्छा, तो इसमें 1 1 1, 2 + 2 4, 2 2 = 4 बन गया। उसने उसने सारा रिवर्स कर दिया, ठीक है। बट एनी हाउ दैट वाज अ बचपन के खेल, बट दैट खेल, एंड टुडे आई एम अ मैथ्स फैकल्टी, राइट, विद हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ 99.4 आई मीन 9 इन कैट। क्या ये बचपना करना चाहोगे? क्या इस बचपने से खेल खेल में 99 परसेंटाइल लेना चाहोगे? यस और नो, अ बिग क्वेश्चन, कम ऑन, क्विक, यस और नो। किसी को नहीं बचपना करना है, किसी को 99 नहीं लेना है, किसी को क्वेश्चन बनाना या बिगाड़ना नहीं है, किसी को अचीव नहीं करना है। यस, बोलिए। राइट, so don't get afraid of becoming kids. Don't ever stop your bakwas ideas in quant. No, that could be a big question solver for you. That could be help you for bringing shortcuts, your own shortcuts for the big questions. हो सकता है तुम क्लास में कई बार मुझे भी उस चीज के सिखा सको, बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे 15 साल के कैरियर में। बहुत सी चीजें मुझे क्लास में ऑफलाइन में कभी हम पढ़ते थे, तो अभी ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन भी ऐसा नहीं कर सकते। म्यूट रखना आपको, अपने आप को हमेशा रखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। म्यूट रखने का मतलब ये नहीं है कि टीचर वांट्स टू बी अ सुप्रीम हेड इन द क्लास, ऐसा नहीं है। म्यूट रखने से बस हम, जैसे अभी थोड़ा किसी का ऑन हो गया था तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होता है, बस वो थोड़ा डिस्टर्ब ना करे किसी को, बस यही पर्पस होता है। वरना यार करो ना ऑन माइक, क्यों नहीं करते हो। यस,
और बोलो जो बोलना चाहते हो। एज फार एज यू आर सेइंग समथिंग गुड एंड समथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, एंड आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। यस नीतीश राव, सिर्फ 2 लोगों को करना है, कैट करा के साथ। यस, श्योर, चलें आगे। Okay, working from options. Throughout the 10 plus 2 plus 4 system has been taught to follow the proper steps. अब ये रूल हम ब्रेक करने वाले हैं, सीखेंगे बट ये रूल हम ब्रेक करने वाले हैं। When it comes to competitive examination, student has to master the art of marking the correct option without solving the question. ये आर्ट हम आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमें करने वाले हैं, स्पेशली इन एल्जेब्रा जहाँ पे बहुत फॉर्मूलाज लगते हैं। स्पेशली इन अलजेब्रा हम कोशिश करेंगे 7 को लगाने की। ऐसा नहीं है कि हम अरिथमेटिक में नहीं लगाएंगे, स्पेशली बोला मैंने, ठीक है, मेजरली बोला। सो द आर्ट ऑफ वर्किंग बैक फ्रॉम द ऑप्शन व्हाट लीड्स टू गुड परसेंटाइल इन कैट, जो मेरे बैक के पीछे आके परसेंटाइल परसेंटाइल इन कैट, राइट। तो ये इस स्लाइड के ऊपर ना बेटा हम बात ज्यादा करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस, ठीक है। सो वी हैव वर्कड ऑन स्ट्रैटेजी। एक मैं क्विक रिव्यू देता हूँ यहाँ तक हमने क्या क्या किया। We talked about the syllabi of the CAT, we talked about the preparation strategies के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया, बहुत चीजें बताई। uh, अब कुछ क्वेश्चंस करें तो कैसा रहेगा, अभी कुछ क्वेश्चंस करें तो कैसा रहेगा, या फिर बिफोर आई स्टार्ट अ क्वेश्चन अभी तुम कुछ पूछना चाहोगे तो आई गिव यू 30 सेकेंड्स। मैं थोड़ा 30 सेकेंड्स पॉज लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है लेके क्योंकि अभी इसके बाद जो सेशन रहने वाला है वो मोस्टली क्वांट पे रहने वाला है। तो मोस्टली अब मैं जो अगला 1 घंटा या वट एवर टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं रहने वाला हूँ। देखो अब देखो मेरे को खुद सिंक्रोनाइज हो गया ना कि मैंने अपना जो पार्ट है उतना किया कि मैंने कितना सेशन किस चीज पे फोकस करना था। तो सिंक्रोनाइजेशन है वो ऑटोमेटिक है, मतलब इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि पता है कि कहाँ पे जाके कितना आने वाला है। तो वही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि व्हेन आई एम सिटिंग फॉर कैट एग्जाम मुझे टाइमर नहीं देखना पड़े, मेरे माइंड में सिंक्रोनाइज है कि 40 मिनट्स हो गए आने वाला है, या इतना टाइम रहता होगा। बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेकेंड्स तक होना चाहिए, बट 2-4 मिनट का प्लस माइनस इज ओके, बट हमें पता होना चाहिए कितना समय बीत हुआ होगा अप्रोक्सीमेट। समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को मुझे करते हो तकरीबन 30 सेकेंड्स हो गए हैं, मुझे इस क्वेश्चन को करते हो अराउंड 40 सेकेंड्स हो गए हैं। वो एक सिंक्रोनाइजेशन करना है हमें, ठीक है। तो वो तभी होगा अगर वो जो 45 मिनट्स वाले स्लॉट में अगर हम काम करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस, राइट। तो आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आई जस्ट हैव व्हाट इज, सो आप मुझे बताओ अगर कुछ है तो टाइप इन, अदरवाइज विल डू दिस क्वेश्चन, राइट। जस्ट कम ऑन। ओके, सो नथिंग, नो वन, नो क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। होने चाहिए क्वेश्चंस, होने चाहिए क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ओके चलिए भाई, अभी क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर हैड सम एप्पल्स विद हिम, उसके पास कुछ एप्पल्स। द फर्स्ट पर्सन केम, एक पहला पर्सन आया। द शॉपकीपर गेव हिम हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड प्लस हाफ एन एप्पल, हाफ एन एप्पल का काट के दिया। मतलब मान लो 6 एप्पल से तो 3 दे दी, खुद एक काट के दिया, ऐसा क्या। नहीं, यहाँ पे क्लू भी लिखा हुआ, द शॉपकीपर डिड नॉट कट अ सिंगल एप्पल, काटा ही नहीं उसने। ऐसे कैसे पॉसिबल। तो कई बार तो फिर ऐसे क्वेश्चन पढ़ के पता क्या हुई फीलिंग आती है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, काट के दिया होगा ऐसा। तभी ये क्लू पहले ही डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर में ऐसे क्लूज नहीं मिलने वाले। इफ एक्सपेक्टिंग सच क्लूज इन एग्जाम, यू आर वेरी बैडली मिस्टेकन। क्योंकि पता है क्या, जितने लोगों को यहाँ पे एप्पल लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि एप्पल काट सकते हैं, मैं कहता हूँ एक काम करो, एप्पल की जगह ना एग कर दो, बॉइल्ड वाला नहीं, सिंपल वाला। अभी ये क्वेश्चन बताओ, तो क्या एप्पल तो काट सकते हो मान लिया, एग कैसे काटोगे। एग कैसे काटोगे, बॉइल्ड नहीं है, सिंपल है, उसको कैसे काटोगे, दो उसको हाँ। अभी बताओ एक क्वेश्चन, एप्पल सब जगह एप्पल की जगह एग कर दो, अभी क्वेश्चन करो।
है ना, ऐसा नहीं हो सकता, तो एप्पल काटा नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे होगा, द सेकंड कस्टमर केम, द शॉपकीपर गेव हिम half of the remaining number of apples plus half an apple. The third now customer came, the shopkeeper gave him half the remaining number of apples plus half an apple. सबको ऐसा ही किया उसने, आधे उसके पास थे प्लस आधा, आधे उसके पास थे प्लस आधा, right? After this shopkeeper was left with no apples, great. How many apples did the shopkeeper start with? तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस होती ना, तो क्या करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं ये कैसे कैसे करके वो रीच करेगा। बट पेपर भी स्मार्ट, आई मीन एग्जामिनर भी स्मार्ट, तो ऐसे क्वेश्चन वो टीटा में डालेगा, ऐसे क्वेश्चन वो टीटा में डालेगा। तो फिर हमें ओवर स्मार्ट बनना है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊं इस क्वेश्चन करने के लिए, जस्ट गिव मी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा मैं। क्या मुझे एक्स वाई जेड चलना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मुझे सोचना चाहिए जो हम मैथ्स में सोचते थे, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। ऐसा भी नहीं, एक और चीज होती है हमेशा, कभी भी हम एप्पल्स को ए नहीं सोचते, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी ए कभी नहीं सोच सकते, हमेशा दुनिया एक्स से स्टार्ट हो रही थी और एक्स पे खत्म होती है, ऐसा ही ना। एक्स वाई जेड, उसके बाद कुछ और सोचेंगे, पहले तो एक्स से स्टार्ट होती है, फिर सेकंड चीज सोचनी हो वाई, फिर जेड, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना दीप्ति, अंकुश, ऐसा ही है ना श्रेया, कि दुनिया एक्स से स्टार्ट होती है और एक्स वाई जेड पे चलती रहती है। हम मैं अगर मैं बोलूं लेट द एप्पल्स बी ए, नहीं सर लेट द एप्पल्स बी एक्स, क्यों। चलो एनीवेज, तो क्या मुझे एक्स वाई जेड से सोचना चाहिए या एबीसी से सोचना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, जस्ट मुझे इतना बताओ, ऐसे क्वेश्चन। कम ऑन यार, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यू जस्ट गिव मी द स्ट्रैटेजी, या सॉल्व मैं करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू जस्ट टेल मी, जस्ट पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन, यस, कम ऑन, यस त्रिनव, प्रशांत, शेख मोहम्मद, श्रेया, डीवी, अदिति, जस्ट पार्टिसिपेट, यस। या डेफिनेटली अगर हम एक्सपेरा से करने वाले हैं वो बहुत लॉन्ग जाने वाला है, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या सोचूं मैं, क्या करूं, थोड़ा थोड़ा मतलब क्या कैसे सोचूं, मुझे बस उतना बताओ, बाकी सोचूंगा मैं, करूंगा मैं। अब मुझे बस बताओ, मुझे 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 करना क्या चाहिए। पहला स्टेप है ना बेटा, मेक योर ब्रेन वर्क, कि क्या ऑल्टरनेटिवली मैं सोच सकता हूँ। वो ऑल्टरनेट लगेगा नहीं लगेगा वो एक सेपरेट सिनेरियो है श्रेया, बट पहले हमें ये करना है कि हम ऑल्टरनेटिवली कर क्या सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहा, अगर मैं एक्स वाई जेड से करने वाला हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन। यस, तो आपने बिल्कुल सही बोला। तो मुझे करना क्या चाहिए, एंड इफ आई से दिस क्वेश्चन इज ऑफ ओनली 15 सेकेंड्स, तो आपको कैसा लगेगा। 15 सेकंड में सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, 15 सेकंड, आई मीन इट, आई रियली मीन इट। अब घड़ी देखना, अभी मैं सॉल्व करूंगा, घड़ी देख के करना। ऐसा मत बोलो रट्टा फिगर्स बदल दो, कुछ भी फिगर्स बदल दो, मैं फिर भी कर दूंगा, और बोलो। तो क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ उसमें फिगर्स का कोई लेना देना नहीं, वैसे भी कहाँ पे फिगर्स है कहाँ पे। यस, राइट। तो स्ट्रैटेजी क्या है, पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, जीरो, उसका हाफ वापस ले लो, उसका डबल कर दो, ये हो गया वन, फिर उसका हाफ वापस ले लो, उसका डबल कर दो, ये हो गया तीन, उसका हाफ ले लो, ये डबल कर दो, ये हो गया सात, खत्म हो गया आंसर, क्वेश्चन इज आंसर इज 7, आप चेक करके देखो चाहे कितने सेकंड लगे मुझे। मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, पर मेरे को 3 नंबर मिल गए, मेरे साथ। अब बताओ क्या करने का है? सीखने का है ये तरीका कि नहीं, वैसे कोई देख के बता सकता है मैंने किया क्या। इसको बोलते हैं बेटा गोइंग रिवर्स, गोइंग रिवर्स। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, आई टेल यू व्हाट आई डिड। हाँ ठीक है, देखो होता क्या है ना, हम पीछे बिल्कुल रिवर्स चलेंगे, बिल्कुल रिवर्स। उसने क्या बोला, आधे प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ एन एप्पल, तो हम हाफ एन एप्पल से हाफ पे चलेंगे वापस। तो एंड वाले कस्टमर पे, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स जाना है, जो लास्ट कस्टमर था उसके बाद शॉपकीपर के पास जीरो एप्पल्स बचे थे, ये जीरो एप्पल्स, सर ये तो फट से हेडशॉट है। अ, हाँ एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हाँ जी। हाँ समझ नहीं आया मुझे, मालूम है आप लोगों को। एक मिनट, आई जस्ट रीड द चैट ऑफ इट। प्रशांत आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा।
हाँ श्रेया, वी विल टेल यू द सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, राइट, ओके फाइन। अभी समझो, मैं अभी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और बहुत धीरे दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट करके इसको सुनो। वंस यू अंडरस्टैंड ना, फिर इतनी फास्ट होने वाला जितना मैंने किया, ठीक है। सुनो ध्यान से, सबसे एंड में, ठीक है, ध्यान से प्लीज, फोकस से, ध्यान से, हर चीज को ध्यान से। जब थर्ड कस्टमर आया था, उसको उसने हाफ प्लस आधा एप्पल दिया था, तो उसके पास कितना एप्पल बचा था? 0 एप्पल बचा था। यस और नो? तो ये 0 एप्पल से पहले उसने कस्टमर को कितने एप्पल दिए थे? आधा एप्पल दिया था, आधा एप्पल दिया था, हाँ या ना? अब ये आधा एप्पल तब बचा था जब उसके पास आधे एप्पल्स दे दिए थे। तो मतलब ये आधा एप्पल आधे एप्पल्स देने के बाद बचा था। मतलब आधे एप्पल्स देने के बाद उसके पास आधा एप्पल बचा था, तो इसका मतलब उसके पास एप्पल होना चाहिए था एक। मतलब क्या है? उसके पास इस टाइम एप्पल होना चाहिए था एक। मतलब मतलब कस्टमर आया मेरे पास एक एप्पल है, तो मैंने उसको आधे एप्पल्स दिए प्लस आधा एप्पल दे दिया। क्या एक एप्पल को मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, हाफ ऑफ द एप्पल्स एंड हाफ एन एप्पल मेक्स वन एप्पल? यस और नो? ये बात समझ में आती है, हाँ या ना? श्या, आनंद जी, प्रशांत, डिड यू गेट दिस और नॉट? अदिति, अंकुश, डिड यू गेट दिस? वन एप्पल, वेरी गुड। अब ये वन एप्पल प्रशांत श्रेया कब बचा था? जब सेकंड कस्टमर को आधा दिया था। गुड ईशा, वेरी गुड रिया। क्या ये एक एप्पल आधा एप्पल देने के बाद बचा था? आई टुक दैट हाफ एप्पल वापस फ्रॉम दैट सेकंड कस्टमर। तो अब मेरे पास 1.5 एप्पल हो गया। ये 1.5 एप्पल वॉज दी हाफ ऑफ द एप्पल, रिमेनिंग हाफ ऑफ द एप्पल। तो हाफ रिमेनिंग थे जब उसको मैंने हाफ दे दिए थे, विच वॉज 3.5। यस और नो? तो हाफ हाफ कट गया, यू लेफ्ट विथ 3 एप्पल्स। यस और नो? यस और नो? ठीक है, ऐसे ही रिवर्स चलो। फिर ये 3 एप्पल्स तब बचे थे जब फर्स्ट कस्टमर को आधा एप्पल दिया था। लेट अस टेक दैट हाफ एप्पल वापस, लेकिन ये आधे एप्पल्स देने के बाद आधे बचे थे, तो इसका मतलब मेरे पास 7 होने चाहिए। तो उसने आधे किया, मैंने डबल करता गया आधा वापस लेने पे, तो रिवर्स। उसने हाफ किया, मैंने डबल किया। समझ आया अब? अभी कैसा लग रहा है? सेकंड स्टेप दोबारा सुनो, सेकंड स्टेप, वेरी गुड। अभी ऐसा मुझे मजा आता है ना जब तुम मुझसे पूछते हो सेकंड स्टेप, से मुझे भी मजा आता है। ऐसा नहीं सिर्फ यू एंजॉय द सेशन, आई आल्सो एंजॉय द सेशन एट दैट टाइम। देखो बेटे ध्यान से सुनो। मैं दोबारा एक बार रब करके कराऊं? I don't know what is happening to my laptop. Yeah, let me rub this. Let me rub this. देखो, बहुत आराम से चलो अभी, है ना? I think Microsoft Windows is something giving me trouble. एक मिनट रुको, just give me a second, please. तब तक आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। या, ओके। देखो, थर्ड कस्टमर, 0 एप्पल्स, took half back, half apple. This half was remaining. हाँ हाँ प्रशांत, अभी बता रहा हूँ। हाफ वॉज रिमेनिंग इन टू दैट वॉज वन। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी सेकंड स्टेप में क्या हुआ? इस जो सेकंड कस्टमर था उसको भी तो प्रशांत मैंने हाफ प्लस हाफ एन एप्पल दिया था, तो उल्टा चलूंगा तो मैं पहले हाफ एन एप्पल वापस दूंगा। यस, पहले आधा एप्पल वापस दूंगा उससे। यस और नो? यस और नो? उससे आधा एप्पल वापस दूंगा। अब अगर आधा एप्पल वापस लिए तब बचेंगे जब मैंने उसको आधे दे दिए थे। मतलब हाफ उसको दे दिए, हाफ मेरे पास पड़े हैं। तो अगर मैं उसको हाफ दे दिए तो उसको मैंने मैंने 1.5 ही दिए होंगे ना? यस, तो इसका डबल मेरे पास होने चाहिए उसके आने से पहले, 3। अब वो कस्टमर मेरे पास आता है 3 एप्पल्स, मैंने उसको आधे एप्पल्स देने हैं, मतलब मैं उसको 1.5 एप्पल्स दूंगा प्लस हाफ और दे दूंगा, तो मैं उसको 2 एप्पल्स दे दूंगा और मेरे पास 1 बचेगा। अभी समझ में आया सेकंड स्टेप प्रशांत? यस और नो? अभी समझ में आया प्रशांत सेकंड स्टेप? गुड। यस। यस, ओके। फिर अपन क्या करते हैं?
अभी फर्स्ट कस्टमर के साथ भी ऐसे करते हैं। अभी 3 एप्पल्स उसको आधा एप्पल देने के बाद बचे थे, तो उससे वो आधा एप्पल वापस देता है, आधा एप्पल वापस लेते हैं। ये आधी एप्पल्स है मेरे पास, जैसे अभी हाफ एप्पल्स विद मी, क्योंकि हाफ में उसको पे कर चुका हूँ, मैं उसको दे चुका हूँ, तो उसका डबल कर लूँ तो मेरे पास स्टार्टिंग में 7 होने चाहिए। अब भी समझ में आया? तो दिस इज रिवर्स साइकोलॉजी। वंस यू नो दिस रिवर्स, द थिंग्स आर इन योर हैंड्स। अभी कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग नाउ? कैन वी क्रैक द कैट? यस। ऐसी स्ट्रेटेजीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है? वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी ग्रेट। So we're going to learn some strategies in many places, many places. अब the क्वेश्चन तो अलजेब्रा का था, बट मैंने इसको अर्थमेटिक का बना दिया बाय सॉल्यूशन। यस, आई थिंक a reverse when it comes to revision. बट देखो पता है क्या है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रीजन रिवीजन और वट एवर, इट्स अबाउट योर थॉट प्रोसेस। इसको लगाने के लिए ना, व्हाट आई सपोज, व्हाट आई हैव एज अ क्वांट फैकल्टी वुड से, योर कंसंट्रेशन लेवल एंड योर प्रैक्टिस स्ट्रेटजी शुड बी वेरी करेक्ट। क्योंकि होता क्या है ना, कैट के अंदर मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत कुछ सीख के जाते हैं, तुम लोग भी सीखोगे, हम लोग भी सीख के जाते हैं, लेकिन मोमेंटली जब उसको लगाना होता है ना, तब हमारी जो रैम है वो स्लो हो जाती है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर की भी होती है, जैसे अभी मेरे लैपटॉप की हो गई थी, वो फटाफट सिलेक्ट नहीं हो रहा था मेरे से पे। तो उसके लिए ना वो जो की नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? और उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ पे, कौन सी चीज को कैच करना है, की वर्ड्स कैच करने जरूरी है। समझे प्रशांत? तो तभी मैंने बोला ना, डिफरेंस क्या है, स्कूल टॉपिक्स तो वही है, तो डिफरेंस क्या है वहां की लर्निंग और यहाँ की लर्निंग? वहां की लर्निंग थी एक्स वाई लगाओ, सीधा करो, चलते जाओ, हैंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन टू नो वेयर टू अप्लाई द क्वेश्चन। यस, वेरी गुड क्वेश्चन श्रेया। बट उसके लिए सेशंस लगाने पड़ेंगे। ऑनेस्टली बेटा, मैं वो चीज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव नाउ 2 आवर्स, मैं 2 घंटे में आपको हर चीज नहीं सिखा पाऊंगा अभी श्रेया, ठीक है? लेकिन बहुत चीजें छोटी छोटी हैं जो कैच करनी है। मैं ऐसा भी आंसर नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आई हैव टू शो यू द वैरायटी, है ना? अभी तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं, आई हैव टू शो द वैरायटी आपको, मैं उसके जरिए आई विल बी टेकिंग यू टू दैट पाथ। उसके लिए मुझे आपको समय देना पड़ेगा, यू हैव टू बी इन माई क्लासेस फॉर दैट। देखो मैं सेलिंग स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि टोटल सेलिंग पार्ट, देखो वो कोई भी चीज सीखने के लिए उसको समय देना पड़ेगा। आई होप यू एग्री विद दिस, राइट? गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो अभी इस क्वेश्चन में तुम ये समझ सकते हो कि जहां पे हमें एक फ्लो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा। सपोज देयर 3 फ्रेंड्स, इसी के रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी, एक क्वेश्चन देता हूँ जिसपे रिवर्स लगेगा, राइट? 3 फ्रेंड्स एंड एवरी फ्रेंड वाज हैविंग सम मैच स्टिक्स। सबके पास कुछ मैच स्टिक्स थे, देयर वर 3 फ्रेंड्स, ए बी सी, ठीक है? ए बी सी, उनके पास कुछ मैच स्टिक्स थे। तो पहले राउंड में क्या किया, ए ने, मान लीजिए इसके पास कुछ मैच स्टिक्स थी ए, इसके पास कुछ थी बी और इसके पास थी सी। तो ए ने क्या किया, बी और सी की मैट्रिक्स को डबल कर दिया, मतलब ए में से बी माइनस करो, सी माइनस करो, और बी को 2b कर दिया, 2c कर दिया, ठीक है? तो ए ने बी और सी की मैट्रिक्स को डबल कर दिया पहले राउंड, ठीक है? पहले राउंड में। दूसरे राउंड में अब जो 2b इसके पास थी, बी ने ए और सी की मैट्रिक्स को डबल कर दिया। पहले राउंड में ए ने बी और सी की मैट्रिक्स को डबल किया, सेकेंड राउंड में बी ने ए और सी की मैट्रिक्स को डबल किया, थर्ड राउंड में सी ने ए और बी की मैट्रिक्स को डबल किया, सी ने ए और बी की मैट्रिक्स को डबल किया। और द इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज कि एंड में एंड में तीनों के पास सेम मैट्रिक्स थी, लेट्स से 42 42 42। एंड में सबके पास सेम मैट्रिक्स थी, लेट्स से 42 42 42। नहीं रुको, 42 नहीं, 42 नहीं लो, 42 नहीं लो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 42 नहीं लो, इससे होगा नहीं क्वेश्चन। एक मिनट, आई गिव यू द गुड नंबर। हाँ, 32 32 था। यस,
not 42, 32. Yes, 32. अब ये होता है बेटा, इन गेटिंग इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन. अब तुमने मेरे से पूछा लिटरली ये मैं सोच नहीं रहा था. इस सेशन का पार्ट नहीं था, बट दिस वाज ओनली बिकॉज यू फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन. आई आल्सो फोकस्ड ऑन. ये होती है टीचिंग प्रोसेस विद स्टूडेंट इंट्रोडक्शन. आई मीन जब दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो अच्छा लेक्चर बनता है, तो चीजें अच्छी निकल के आती है. तो अब मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसके ऊपर आप सोचोगे. अभी मत सोचना भाई, प्लीज क्लास के बाद सोचना. मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. एवरीवन, आई वाज नॉट नो, आई डोंट नो हाउ मेनी दे वर हैविंग एट द स्टार्ट. ए के पास कुछ मैथ्स थी, बी के पास कुछ मैथ्स थी, सी के पास कुछ मैथ्स थी. पहले राउंड में ए ने बी और सी को डबल किया, सेकंड राउंड में बी ने ए और सी को डबल किया, थर्ड राउंड में सी ने ए और बी को डबल किया, और एंड में सबके पास 32 32 32. अब बताओ स्टार्ट में कितनी थी? ए के पास कितनी थी, बी के पास कितनी थी, सी. इसमें भी रिवर्स जाओगे तो ही सॉल्व होगा, वरना तो फिर ढूंढते रह जाओगे. होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस और नो? होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस और नो? चलो भाई आगे. अरे जल्दी. या गुड, थैंक यू. चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. ह्यूज क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सिर पे. ये पूछा क्या आपने? क्वेश्चन क्या है? ऑन अ लॉन्ग स्ट्रीट, ऑन अ लॉन्ग स्ट्रीट देयर 1,60,000 बल्ब्स. वाओ. 1,60,000 बल्ब. अरे होते ही हैं स्ट्रीट लाइंस पे, होते कौन से. Each bulb had a switch, individual switch. 1,60,000 switches भी, 1,60,000 switches भी. Initially, all switches are off. Initially, सारी switches off. ठीक है. A person walks through, a person walks through the street and changes the status of every switch. अभी क्या है? उसने हर एक स्विच की स्टेटस को चेंज कर दिया. Changes the status of, changes status of each switch. ठीक है. Then second person walks through the street. He changes the status of every switch starting with switch number 2. ठीक है. Every switch starting with ऑल्टरनेटिव स्विच बोलते हैं, 2 4 6 8 ऐसा करके. मल्टीपल ऑफ 2 बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ. यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 बोलना चाहिए. थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने. मल्टीपल ऑफ 2 4 6 8 वाली स्विच उसमें 2 4 6 और वेरी ऑल्टरनेटिव स्विच. एवरी सेकेंड स्विच ऐसा बोलो. 8. पहले ने सबका चेंज किया, दूसरे ने सेकेंड फोर्थ ऐसा चेंज किया. थर्ड पर्सन थ्रू ही चेंज स्टेटस ऑफ एवरी थर्ड स्विच स्टार्टिंग विद द स्विच नंबर 3. मींस 3 6 9 12 उसके स्टेटस को चेंज किया. ठीक है. अनिश्चित क्या था? यहाँ पे भी ओ एफ लिखा हो, डबल लिखना चाहिए था. ग्रामर इंग्लिश है ना, इंग्लिश हम लोग को नहीं आती है, गलती कर देते हैं इंग्लिश नहीं. तो मैथ्स वालों को माफ कर देना इंग्लिश में. मैथ्स वालों के नंबर में नहीं आते इंग्लिश. नाम बोल सकते ऐसे सोच के मार डालते हैं. चलो एनीवेज. तो 1 2 3 4 डैश अप टू 1,60,000 ये सब पे जाएगा. राइट. अब फोर्थ वाला कौन सी भी कुछ स्टेटस चेंज करेगा, 4 8 12 ऐसा करके. राइट. तो आपको एंड में ऐसे सब लोग करते जाए. फॉलोइंग दिस रूल 1,60,000 पीपल वॉक थ्रू द स्ट्रीट. सबने ऐसा ही किया. अपने मल्टीपल पे गए ऐसा बोल सकते हो. ठीक है. अब आपको एंड में बताना है एट द एंड ऑफ दिस हाउ मेनी बल्ब्स आर ऑन, या कितने ऑफ है. ऑब्वियसली ऑन पता लग जाएंगे तो ऑफ पता लग जाएंगे, ऑफ पता लग जाएंगे तो ऑन पता लग जाएंगे. वाह प्रशांत सर बहुत फास्ट है. सही है. प्रशांत सर ने पढ़ते ही आंसर दे दिया. क्या बात है. बोल दिया. रॉक ऑन. रॉक ऑन. अभी स्ट्रैटेजी भी बताइए सर. स्ट्रैटेजी भी बताइए प्रशांत. क्या किया आप? क्या रुक जाए थोड़ा, 30 सेकेंड रुक जाएंगे. अभी अपनी टाइपिंग करके रखो, एंटर मत मारिएगा. 30 सेकेंड रुकने का है. आप अपना आंसर टाइपिंग करके रखो. लेट एवरीवन थिंक ऑफ. राइट. या. यस. ठीक है प्रशांत, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन टाइपिंग करके रखिए. प्लीज एंटर मत मारिएगा. एंटर मत, सब भांडा फूट जाएगा. अरे खेल खत्म हो जाएगा. फर्स्ट क्लास में बताया था किसने? मैंने तो अभी 5 स्टार लिए. आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्लास टुडे. हु टॉट यू दिस इन फर्स्ट क्लास? कल
प्रशांत सर ने राम मोहन सर ने कराया क्या? अच्छा। ऑलरेडी डन। अरे यार सर मेरा सेशन ले गए, चलो कोई बात। वाह। चलो फिर स्ट्रैटेजी बताइए सब लोग यार, क्या है इसका, इसमें क्या स्ट्रैटेजी है? ठीक है। ओके, क्या स्ट्रैटेजी है इसमें? कौन से नंबर ढूंढने हैं मेरे को? कौन से नंबर ढूंढने हैं मेरे को? अरे अब तो बता दो, तुम्हें कल कर तो लिया, फिर मुझे स्ट्रैटेजी तो बता दो बस। तो चलूँ मैं फटाफट। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू, आई मीन व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स यू? हाँ, क्वेश्चन की और आंसर। अरे बाबा आंसर कौन याद करने वाला है? तो मान लो मैं 1,60,000 के बजाय यहाँ पे 100 लिख दूं, तो फिर आंसर क्या होने वाला है अभी? अभी क्या आंसर होने वाला है फिर? आंसर थोड़ी, मैंने बोला तो आंसर नहीं लर्न करना है, क्वांट है ये, कैट है ये। चीज लर्न करना है, आंसर याद है सर। आंसर नहीं लर्न करने हैं। आंसर तो मैं नहीं लर्न करता यार, इतनी बार एक क्वेश्चन कराता हूँ उसका आंसर ही नहीं लर्न। हाँ, स्केयर्स के बारे में बता। आंसर इज ऑलवेज द परफेक्ट स्केयर, ऐसा क्यों? परफेक्ट स्केयर्स वाले ऑन रहने वाले हैं, ऐसा क्यों? बाकी ऑफ रहने वाले हैं, ऐसा क्यों? करिए, ऐसा क्यों? परफेक्ट स्केयर्स वाले ऑन क्यों रहने वाले हैं, जल्दी। आगे भी जाना है, सब लोग बोर होंगे। बिकॉज, बिकॉज ब्रो, बिकॉज ओनली एंड ओनली परफेक्ट स्केयर्स, परफेक्ट स्केयर्स हैव odd number of factors, odd number of factors। इस वजह से मतलब क्या है ना बेटा, देखो लेट मी टेल यू। लेट्स सपोज इफ आई पिक अ नंबर, लेट्स से 4, लेट्स से बल्ब नंबर 4। इस पे कौन कौन विजिट करने वाला है, जो इसके फैक्टर्स होंगे, मतलब इस पे पर्सन नंबर 1 विजिट करेगा, पर्सन नंबर 2 विजिट करेगा और पर्सन नंबर 4 विजिट करेगा। पहले इनिशियली बल्ब ऑफ था, ठीक है, ऑफ था, तो 1 इसे ऑन करेगा, सेकंड पर्सन इसे ऑफ करेगा और थर्ड पर्सन इसे फिर ऑन करेगा। तो किसी भी बल्ब को ऑन रहने के लिए ना उस पे ऑड नंबर ऑफ विजिट्स होनी चाहिए। समझ आया मेरी बात? किसी भी बल्ब को ऑन रहने के लिए उस पे ऑड नंबर ऑफ विजिट्स होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर ऑफ विजिट्स होनी चाहिए। जिस पे इवन विजिट्स होंगी वो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वो परफेक्ट स्केयर्स ही होते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि कोई भी बल्ब पे उसका फैक्टर आएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने मल्टीपल पे जा रहा है तो किसी भी बल्ब पे उसका फैक्टर आएगा। तो अगर 4 पे उसके फैक्टर्स आएंगे, ऐसे ही 6 पे भी उसके फैक्टर्स आएंगे। 5 एक परफेक्ट स्केयर नहीं है, उस पे आएगा 1 नंबर पर्सन और 5 नंबर। तो ये इसे ऑन कर देगा, ये इसे ऑफ कर देगा। तो ओनली एंड ओनली दैट bulbs which are perfect squares will have odd number of visits, and because of the odd number of visits they will be on at the end। अभी समझ में आया रिया, प्रशांत? तो परफेक्ट स्केयर के लिए क्या करना चाहिए, इसका स्केयर रूट निकालना चाहिए। तो 1,60,000 का जो स्केयर रूट है वो 400 होता है, तो मतलब 400 का स्केयर है। तो 1,60,000 के नीचे 400 स्केयर्स हैं, तो 400 स्केयर्स है, तो 400 बल्ब्स ऑन होंगे, रेस्ट विल बी ऑफ। अभी समझ में आया रिया, प्रशांत, श्रेया, ईशा, अंकुश, आनंद? यस, राइट, गुड। तो इसको अब रट्टे नहीं मारना है बेटा, रट्टे नहीं मारना है, समझना है। की नोट्स में यही लिखना है आपको। इसी को ब्लीक कहते हैं की नोट्स बनाओ, वो बुक कीपिंग करो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। तो इसमें लर्निंग क्या है? लर्निंग क्वेश्चन नहीं है, लर्निंग ये है लर्निंग दैट परफेक्ट स्केयर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली परफेक्ट स्केयर। तो अगर क्वेश्चन कभी बोले, किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि एक नंबर है उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो दिमाग में झट देना चाहिए नंबर परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, ऑप्शन में परफेक्ट स्केयर उठाओ तो दो बस। जिसको कहते हैं की नोट, जिसको कहते हैं लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग। क्वेश्चन नहीं रखना है, क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा। बल्ब की बजाय बॉक्सेस आ जाएंगे, बॉक्सेस के बजाय गेट्स आ जाएंगे, रूम्स के कुछ भी आएगा, थिएटर गेट्स के रूम्स आ जाएंगे, चेयर्स ऑन ऑफ, मतलब कुछ भी आ जाएगा। क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करके क्या करोगे? स्ट्रैटेजी लर्न करो, कॉन्सेप्चुअल दैट परफेक्ट केस है ऑड नंबर ऑफ। क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, लॉजिक एल्जेब्रा का है, सोचो।
This is cat. This is matrix. Getting my point? Getting my point? समझ आ रही है बात? Right? This was QA in CAT 2021. जिसे मैंने कहा था we will talk over this also. CAT 2021 had 22 questions QA में. 40 minutes दिए गए थे. अभी ऐसा ही होने वाला मुझे नहीं पता, going to be change also because CAT is ever changing process. 34 भी रहते थे 2 साल पहले. 34 क्वेश्चन 60 मिनट्स मिलते थे. ठीक है, तो अभी साल क्या रहे चांसेस इसी के हैं, बट लेट्स सी. ऑफ दिस 22 क्वेश्चन 16 वर एमसीक्यूज, मतलब जिसके ऑप्शंस थे आपके पास, एंड 6 वर नॉन एमसीक्यूज, मतलब टीटा टाइप इन द आंसर्स. द बेस्ट पार्ट ऑफ टीटा उसका नेगेटिव नहीं रहता. इसका 3 नंबर मिलता है करेक्ट का और -1 होता है रॉन्ग का. लेकिन टीटा में 3 करेक्ट मिलता है और 0 होता है रॉन्ग का. रॉन्ग 0 नहीं करता. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टीटा, बट दैट डजंट मीन दैट टीटा हैज टू बी अटेम्प्टेड ऑलवेज. टाइम तो कंज्यूम करता है ना. तो टीटा को इस फैसिनेशन में अटेम्प्ट नहीं करना हमेशा कि मतलब उसके नेगेटिव नहीं होता तो गलत में भी तुक्का मार. वो तुक्का बाद में 30 सेकंड्स में मार देना यार. अभी क्यों पंगे ले रहे हो? अभी वही करो जो आता है. 30 सेकंड जब बच जाएंगे, यू डू व्हाटएवर यू वांट फॉर टीटा. राइट? राइट. तो जिसमें नंबर सिस्टम, देखो इसमें अब नंबर सिस्टम को सेपरेट कैटेगरी बनाया है थोड़ी देर के लिए, वरना मैंने कहा था अलजेब्रा के साथ मिक्स किया जाता है. तो 7 भी बोल सकते हैं आप. नंबर सिस्टम के एक्सक्लूसिवली 2 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा में से 5, जिसमें से आइडियल अटेम्प्ट 1 से 2 का था, तो दोनों भी किए जा सकते, किसी किसी ने किया. अलजेब्रा में से 5 था तो 2 थोड़े डिफिकल्ट थे, 2-3 आइडियल अटेम्प्ट था. राइट? तो वो 2 छोड़ने कौन से, वो भी हमें वहीं पे मौके पे जानते हैं. तो 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक में से थे, एक एडवांस मैथ्स में था, 3 ज्योमेट्री. तो अराउंड ये थोड़ा बाइफरकेशन था अगर हम लास्ट ईयर के कैट को फोकस करें. इज इट क्लियर? तो अब ऐसा ही रहने वाला है, तो कोई पक्का नहीं है कि अर्थमेटिक से 11 ही आने वाले. No, no, arithmetic always have a major chunk of the exam. Every year we have seen this from last, let's say 10-15 years. But चांसेस इसी के हैं बहुत ज्यादा, और फेवरेट भी है सब लोगों का. और मेजर चंक, जैसे कि चाहे कोई जिसका कोई भी बैकग्राउंड रहता है, तो अर्थमेटिक ही उसको थोड़ा सही रहता है कि उसको पता होता है पहले से काफी ज्यादा. तो अर्थमेटिक हैव अ मेजर चंक ऑल टुगेदर. वो भी थोड़ा बाइसनेस कम होती है इसके अंदर. बट यू नेवर नो, इट्स कैट. आई कैन नॉट चैलेंज ऑफ दिस. आई कैन ओनली रेकमेंड दिस हैपन. राइट? चैलेंज नहीं मैं कर सकता. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस चीज को लेके. आप कुछ सीखते हैं स्केलिंग टेक्निक्स. राइट? तो कुछ बात करते हैं कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर, कुछ जादू करते हैं, खेल खेलते हैं, खेल. ठीक है? देखो बेटा, इस खेल को किताबों में बोला जाता है वैदिक मैथ्स. लेकिन ठीक है, व्हाटएवर, वैदिक पुराणातक मैथ्स कैसा रहता है ऐसा कुछ है. बट टेक्निक्स है. बस वो टेक्निक्स आपको, अब ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग टू टीच यू बैकर्स हियर हाउ टू प्ले विद दैट बॉल्स, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यू थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कैट. तो मेरा फोकस आप लोगों को पीएचडी कराना नहीं है मैथ्स के अंदर, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स, आई एम टीचिंग क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है? तो जहाँ जो चीज मैं इस पे फोकस करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड स्केयरिंग टेक्निक्स. स्केयरिंग टेक्निक्स, किसी चीज को क्विकली स्केयर करना. तो आप बोलोगे सर अभी तो पीछे बोला था लर्न करने का है. हाँ, लर्न करने का है ना. 35 तक तो लर्न करने का है ही है. 35 तो लर्न करना ही है. अगर 35 लर्न किया ना, अगला 60-70 15 सेकंड का गेम है. सीखने के लिए तो 10-15 मिनट लगेंगे, सॉल्व करने में 10-15 सेकंड लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी सर 52 का स्क्वायर इज 2704, 53 का स्क्वायर इज 2809, 54 का स्क्वायर इज 2916. अरे कोई रूल नहीं बनाया मैंने. प्रॉपर कैलकुलेशन है, प्रॉपर टेक्निक है. बीच में से भी पूछोगे तो बता दूंगा, लाइक 48 इज 2304, 48 का स्क्वायर इज 2304. राइट? तो सिखाने जा रहा हूँ मैं. ठीक है? लेट्स लर्न दैट. तो फिर से few, I'm trying to give you the few glimpses of what we are going to do in coming sessions, right? So I took some questions and I taught you some strategy about how I'm going to teach you the rules and break the rules by solving the questions. वो जो सब चीजें मैंने preparation strategy में आपको बताया, I'm applying that in questions and telling you how is going to happen the things, right? This is what the purpose of the topic and the purpose of the lecture is, right? I hope you're understanding this. तो मान लीजिए मुझे 97 का स्केयर करना है. मान लीजिए आई एम गोइंग टू गो फॉर द स्केयर ऑफ 97, राइट? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पूरे वैदिक में द मेन बेस इज गोइंग टू बी 100. अब जैसे मैंने 100 बोला, समबडी विल से 100 - 3 का होल स्क्वायर कुछ करेंगे सर, और फिर बोलेंगे शॉर्ट. अरे नहीं,
100 - 3 में कहीं लिखने वाला भी नहीं हूँ। 100 एक तरफ, मैं 97 और 100 का क्या पूछने वाला, माइनस। 100 - 3 नहीं लिखने वाला हूँ, माइनस। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, नंबर में से बेस निकालता है, नंबर में से बेस निकालता है। मतलब 97 - 100 करना है, ना कि 100 - 3 करना है, ठीक है। इस -3 को एज इट इज 97 के नीचे लिख देना, 97, और बोलना है 94। जो ऑपरेशन है वो कर देना। आधा स्क्वायर कैलकुलेट हो चुका है, मेरा आधा स्क्वायर कैलकुलेट हो चुका है, 94। इसके पीछे दो प्लेसेस और फिल करनी है। अब लिखते जाना, ये चीज बहुत क्विकली लिखते जाना, बता रहा हूँ। दो प्लेसेस और फिल करनी है। अब यहाँ दो प्लेसेस पे करना क्या है, लिखना क्या है यहाँ पे दो प्लेसेस। इन दो प्लेसेस को फिल किस वैल्यू से करना है, यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। क्या लिखना है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस क्या था, -3। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। बट प्लेसेस दो है, क्या 90 लगू के 09, 90 तो वैल्यू बना देगा, इसको लिखा जाएगा 09। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 97, 940। अब चेक कैलकुलेटर पे चेक कर लो, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 97। तो क्या किया मैंने, नंबर में से बेस निकाला, वो वैल्यू 97 के नीचे लगाया, पीछे दो प्लेसेस लगाई। पीछे दो ही प्लेसेस लगानी है, बताना भूल गया। दो ही क्यों लगानी है, एक क्यों नहीं लगानी, तीन क्यों नहीं लगानी, चार क्यों नहीं लगानी, क्योंकि मेरे बेस में दो जीरो। जितनी मेरे बेस में जीरो उतनी प्लेसेस आफ्टर दिस ऑपरेशन, और यहाँ पे फिल क्या करना है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस वाज -3, स्क्वायर हो गया 9, दो प्लेसेस 0 9। समझ आया, समझ आया। अब ये पूरा डायग्रामेटिकली सॉल्व नहीं करना है पेपर में। तो मैंने 97 × 97 इसलिए नहीं अवॉइड किया कि आप ये डायग्राम बनाने बैठ जाओ, नहीं। आपको डायग्राम इज जस्ट मेड टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रैटेजी। आपको दिमाग में सिर्फ उस कॉन्सेप्ट रखना है। कल को मैं पूछूंगा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 96, फटाफट आंसर आना चाहिए 9216। लिख के नहीं दिखाना है ऐसा कुछ, सर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और फिर आंसर भी पहुंचेगा, फिर कोई फायदा नहीं है इसका। फिर तो वो 97 × 97 जो पहले करते थे क्रॉस प्रूफ लगा के, दैट वाज द बेटर वे आउट। उतना ही समय लगेगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए। सिर्फ इस डायग्रामेटिकली शो किया है, क्या करना है, डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस को नीचे ऑपरेशनल लगाना है, पीछे दो प्लेसेस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, और आंसर आ जाएगा। तो 96 है, 4 का गैप चल रहा है नेगेटिव में, 96 - 4 92, और 4 का स्क्वायर पीछे लगाना है, 16 आंसर आ 9216। आई गेटिंग दिस। अरे यार इतना जान लगाई, बोलो यस नो यस कम ऑन। नहीं आया तो बताओ, नहीं आया तो। अरे जान लगती है यार, कुछ तो बोलो, यस और नो। कम ऑन यार, कम ऑन। प्रशांत, ईशा, अंकुश, रिया, समझ में आया एवरीवन, अदिति, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस, यू गेट दिस। यस 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 कम ऑन, बकअप। तो एक खुद करके दिखाओगे, हमको वैल्यू देता हूँ क्या, मुझे आंसर टाइप करोगे फटाफट। यस, चलो फिर मुझे बताओ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 93। यस, कम ऑन क्विक। तो क्या आंसर आएगा 93 का स्क्वायर, क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी सेकंड में तो आंसर आना चाहिए, जल्दी। 7 का गैप है, क्या करना है, पीछे 49 लगाना है, जल्दी जल्दी, कम ऑन। अदिति, श्रेया, ईशा, कम ऑन क्विक। दिया आंसर। 93 में से निकालिए 7, कितना जाएगा, 8649। यस और नो, होएगा या नहीं होएगा, कि गलत किया मैंने कुछ। कम ऑन प्लीज टेल मी। राइट, ठीक है अदिति, श्रेया, ईशा, आई होप यू गेटिंग दिस। अब अगर मान लीजिए 100 के ऊपर की वैल्यू, फिर क्या करना है,
अगर 100 के ऊपर की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 103 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, 103 के साथ 100 विद गैप ऑफ +3 हो जाएगा। नंबर में से जब बेस निकालेंगे तो अब नंबर बड़ा है, बेस छोटा है, तो गैप प्लस पे जाएगा, तो प्लस पे जाएगा, तो इस प्लस को इसके नीचे रखेंगे तो कितना बनेगा? 106 लिखेंगे और पीछे दो प्लेसेस, 3 का स्क्वायर 0 था। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 103। यस और नो? अभी कैसा रहा? उससे भी सिंपल सी बात है, गैप के नीचे है तो सब्ट्रैक्शन में आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गैप के ऊपर है तो प्लस आएगा तो प्लस करेंगे और पीछे स्क्वायर लगा देंगे। यस और नो? तो ओनली प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड अगर जो नंबर है, मान लीजिए 88 है, उसका जो डिफरेंस का स्क्वायर है, मतलब if मैं 100 लूंगा तो यहाँ पे डिफरेंस है -12, तो -12 अपन यहाँ करेंगे तो दैट इज 76। तो प्रॉब्लम है इज, अगर 12 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो दैट इज 144। अब क्या करेंगे? अब प्लेसेस दो है क्योंकि बेस पे तो अभी भी दो ही जीरो है, तो अभी इस केस में क्या करेंगे? प्लेसेस तो दो ही है। यस और नो? तो अब भी 3 डिजिट्स हैं। अब भी कैसे सेटिंग होगी? तो इसको कैरी करेंगे और क्या करेंगे? कैरी करेंगे तो दैट बिकम 7744। आई होप द थिंग्स गॉट सॉल्व्ड। यस, is that clear? Yes, Isha, Riya, Shreya, is it? Is it? Get it? So who are you going to go with 112 then? 112. The similar way out. 112 with 100 is going to difference of +12. That is going to be +12. That is 124. Which is the numbers 144. That is going to give me 12544. I hope you understand. This is the square of 112. तो प्योर टेक्निक है, प्योर कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। यस, एंजॉइंग? यस और नो? एंजॉइंग? हाँ हाँ बिल्कुल ईशा, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट ईशा? देखो 88 किया, 100 किया ईशा। 88 एंड 100 का गैप इज नेगेटिव क्योंकि नंबर में से बेस निकालते हैं, ठीक है? तो -12 रहा, तो -12 एज इट इज 88 के नीचे लिखेंगे तो कैसा रहेगा? और 88 में से 12 निकालेंगे तो 76 आएगा। यस और नो? ठीक है ईशा? उसके बाद दो प्लेसेस फिल करनी है, मेरे बेस में दो जीरोस है, लेकिन 12 का स्क्वायर इज 144। अब प्लेसेस दो है, डिजिट्स तीन है, तो 1447744। अभी समझ में आया? तो हम भी कैरी कर देंगे 6 में, तो 774। अभी समझ में आया ईशा? ऐसे ही मैंने 112 के साथ भी किया, वहां पे प्लस में गैप था, यहाँ पे माइनस में था तो नेगेटिव किया, वहां पे प्लस में था तो प्लस कर दिया, रेस्ट रिमेन्स द सेम। ओके ईशा? इट्स ओके, थैंक यू। राइट, मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यूर इन द क्लास, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। रिपीटिंग अ थिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोगों को लगना नहीं चाहिए कि 1-to-1 सेशन नहीं है, आपको 1-to-1 का फीलिंग आना चाहिए। कीप ऑन आस्किंग अबाउट, तभी तो मैंने बोला कीप ऑन राइटिंग। रिकॉर्डिंग है हर चीज का, लेकिन हर चीज रिकॉर्डिंग पे निर्भर मत हुआ करो, ठीक है? लाइव इज लाइव। ये बट क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं बाद में, फिर इज नो वन टू सॉल्व दैट थिंग, सो लाइव हैव दैट privilege that you can ask the questions, right? ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, सर 100 का बेस कहाँ तक करना चाहिए? क्या ये सब जगह लगेगा? मेन बेस देखो, मैंने पिछले स्लाइड पे क्या लिखा, मेन बेस 100, मेन वर्ड का भी कोई इंपॉर्टेंस था, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंस था वो सिखा। और फॉर एग्जाम्पल मुझे 197 का स्क्वायर करना, लेट्स से मुझे 197 का स्क्वायर करना। अब अगर 197 का स्क्वायर करना, अगर मैं 100 यूज करूंगा तो डिफरेंस तो ले लूंगा 97, लेकिन उसका स्क्वायर पीछे कौन लगाएगा? 97 के लिए तो पहले ही वैदिक लगाया, तो पीछे 97 के पीछे कौन क्या करने वाला? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मेन बेस 100 ही रखने वाले हैं, मेन बेस 100 ही रखने वाले हैं, लेकिन वर्किंग बेस हम थोड़ी देर के लिए वर्किंग बेस 200 करने वाले हैं, 200। अब 100 से 200 मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा? जब 100 का ट्वाइस करेंगे, मतलब मैंने क्या किया, अपने मेन बेस को ट्वाइस किया, मैंने मेन बेस को ट्वाइस किया। इज दैट क्लियर? मैंने मेन बेस को ट्वाइस किया। इज इट ओके? मेन बेस को ट्वाइस किया, तो 197 एक तरफ, 200 एक तरफ, डिफरेंस -3, -3। अभी तक के सारे स्टेप्स वैसे ही जैसे पीछे किए, मतलब डिफरेंस दिया, सबट्रैक्ट किया या ऐड किया, whatever, है ना? लेकिन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं ना, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं,
You have to multiply this number with the same number with which you have multiplied your मेन बेस टू गेट योर वर्किंग बेस। मतलब 194 का ट्वाइस करने वाले, अब 194 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से आपने अपना मेन बेस मल्टीप्लाई किया टू गेट योर वर्किंग बेस। सो विल बी मल्टीप्लाइंग 194 का ट्वाइस, विल बी डूइंग 194 का ट्वाइस, एंड 194 का ट्वाइस विल बी 388। यस, 180, 388। Once you have applied this rule, your वापिस बेस becomes 100। तुम्हारा वापिस बेस 100 बन गया। पीछे दो प्लेसेस लगाया जाएगा, वहां पे स्केयर ऑफ डिफरेंस लगाया जाएगा। 3 का स्केयर 09, सो दिस इज द स्केयर ऑफ 197। This is the square of 197। Is it clear? Is it clear? Is it clear? तो मतलब अगर मुझे 204 का स्केयर करना है तो 200 का गैप लिया जाएगा, +4 किया जाएगा, +4 किया जाएगा, 208 किया जाएगा, इसका ट्वाइस किया जाएगा क्योंकि मैंने अपने बेस को ट्वाइस किया, ये बनेगा 416। और पीछे वापस, अब वापस बेस बन गया मेरा 100, वापस बेस बन गया 100 क्योंकि एप्लीकेशन लग गई है। पीछे दो प्लेसेस फिल होंगी, 4 का स्केयर 16, तो दिस इज द स्केयर ऑफ 204, दैट इज 41616। Is it clear to everyone? Is this clear to everyone? Or- Good. Great. So that means here, if I want to go for the square of let's say 47, तो अपन क्या करें? अभी क्वेश्चन 47 के स्केयर के लिए क्या करें? मेन बेस 100 रखेंगे। अभी चलो नेक्स्ट पेज पे रहते हैं। 47 के स्केयर के लिए क्या करें? तो मेन बेस तो 100 करेंगे, मेन बेस तो 100 रखेंगे। वर्किंग बेस क्या लेंगे? वर्किंग बेस क्या लेंगे? 50। 100 से 50 कैसे आया? 100 इंटू 1/2। यस, तो एक तरफ 47, एक तरफ 50, व्हाट इज द गैप? -3। इस -3 को यहाँ लगाएंगे तो कितना रहेगा? 44। 44 का हाफ करेंगे तो कितना रहेगा? 22। वापिस बेस ऑफ 50 नहीं 100 बन गया, मैंने बोला था वापिस बेस बन जाएगा। पीछे दो स्पेसेस लगाएंगे, 09, दिस इज द स्केयर ऑफ 47। अभी समझ में आया कितना फास्ट आता है? तो ऐसे ही 53 का स्केयर करना है तो 50 लिखेंगे विथ +3, विथ +3 कितना रहा? 56। इसका हाफ करेंगे कितना रहा? 28। उसके लगाएंगे 2809। अभी समझ में इज द स्केयर ऑफ 53। तो 35 तक आप लर्न करेंगे, 35 तक लर्न करेंगे, उसके बाद 50 का बेस चलेंगे 74 तक, फिर 75 से शुरू करेंगे 100 का बेस टिल 125। इतना ही बहुत है बेटे। 200 सिखाना वाज जस्ट टू मेक 50 आसान, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं फ्रॉम माय लास्ट 15 इयर्स करियर, तो 125 तक का स्केल आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन। इसके ऊपर मैंने कभी इतना ज्यादा एक कभी वन से क्वेश्चन देखा होगा, बट आई थिंक दैट मेक्स योर जॉब सॉल्व फॉर solving even for DL as well, for solve if I go for DL. This is what my experience is, right? But I told you how to go do with 200, 300 के पास आएंगे तो into 3 कर दीजिएगा, 400 के पास into 4। I taught you for everything at least, but this is the main thing which I think I want to teach you for today's class. There are many things more, but this was one thing. Clear? Yes, Shreya, Isha, Ankush, and Aditi, right? Okay, let's have one previous question. Questions तो काफी थे, but let's have one question, very interesting one question. Good, Isha. So let's have one, two question for the previous questions, and then I'll give you a small offer. I hope you will, everyone will like, and will meet us in the coming session. Yeah. So some previous year questions. Let's see this. A real cat questions. This is real cat questions. Here not mentioned. आप Google कर सकते हैं, आपको year भी मिलेगा. In a 10-kilometer race, ABC running at uniform speeds, ABC, each running at uniform speed, get the gold medal, silver medal, and bronze medal respectively. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि A was the winner, फर्स्ट आया, B सेकंड आया और C थर्ड आया, क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली भी बोला। ठीक है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। If A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer, then by how many meters does A beat C?
एक बार कई बार देखने को लगता है ना 2 किलोमीटर, क्योंकि ए ने बी को हराया किलोमीटर से, बी ने हराया सी को 1 किलोमीटर से, तो ए ने हराया होगा बी को और सी को 2 किलोमीटर। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बी ने तब हराया होगा जब बी इज ऑल्सो इन द फिनिशिंग लाइन, है ना। अगर 10 किलोमीटर का रेस है, अगर 10 किलोमीटर का रेस इसको ऐसे लिया जाए, तो व्हेन ए वाज ऑन द फिनिशिंग लाइन, बी वाज 1 किलोमीटर एट द बैक, 1 किलोमीटर पीछे था। और जब बी वाज इन द फिनिशिंग लाइन, देन सी वाज 1 किलोमीटर बैक। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है जब ए वाज एट द फिनिशिंग लाइन, सी वाज हाउ मच बैक, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब सी 2 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब ए पहुंचा और यहाँ पे भी 1 किलोमीटर तो बी झट से यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं है। तो बी 1 किलोमीटर भागा तो ये भी कुछ और एक्स्ट्रा भागा होगा, तब जाके 1 किलोमीटर का गैप हुआ। तो ये गैप यहाँ पे थोड़ा कम कम होना चाहिए। यस और नो, ये प्रैक्टिकल बात समझ में आती है। तो ये गैप यहाँ पे थोड़ा कम होना चाहिए। तो मुझे वो पूरा बताना है कितना रहा, कितना पीछे है, मीटर्स में बता दो। उसने बोला हाउ मेनी मीटर्स, और फिर से किलोमीटर्स में नहीं बताना, मीटर्स में बता। ये बातें पकड़ में आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब ऐसे क्वेश्चन पे करना क्या चाहिए? हाउ शुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? बहुत लंबा जाएगा, एक्स लेना चाहिए, वाई लेना चाहिए, फिर पीछे से सोचना चाहिए, आगे से सोचना चाहिए, दोनों को स्टार्ट इकट्ठे करवाना चाहिए। मेक समथिंग वेरी डिफिकल्ट, राइट? आसान बना है इस क्वेश्चन को अभी। अगर ये क्वेश्चन भी 30 सेकंड्स के अंदर अंदर निकल जाए तो कैसा लगेगा? अगर अब ये क्वेश्चन भी 30 सेकंड में निकल जाए तो कैसी फीलिंग आएगी? ईशा, अदिति, श्रेया, हाउ विल यू फील इट? यस, हाउ विल यू फील दिस? देखो, समय तो सेम लगा ना, जब ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी, तो समय तो सेम लगा ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन ए कवर्ड 10 किलोमीटर, उतनी देर में बी कवर्ड 9 किलोमीटर, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? पहली सिचुएशन में कैसा बोल सकता हूँ? व्हेन ए कवर्ड 10 किलोमीटर, बी कवर्स 9 किलोमीटर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी, क्या मैं बोल सकता हूँ इस 10:9, कि जब ए करेगा 10 किलोमीटर उतनी देर में बी करेगा 9 किलोमीटर, ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ या ना? कैन आई से दिस? ऐसे सेकेंड सिचुएशन में जब बी ने किया 10 किलोमीटर, क्या सी ने किया 9 किलोमीटर? यस और नो, ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि स्पीड ऑफ बी इज टू स्पीड ऑफ सी इज 10:9, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? यस और नो, इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? अब यहाँ पे एस बी, वेरी गुड, यहाँ पे एस बी और एस बी सेम है, हाँ या ना? बट रेशो वाइज डिफरेंट है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10। तो स्कूल में किया हुआ है रेशियो सेम करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो इस रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो होगा क्या? आई विल गेट द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ एस ए इज टू एस बी इज टू एस सी। मतलब जब ए करेगा 10 × 10 100, 10 × 10 100, एस बी करेगा 9 × 10 90, और एस सी करेगा, स्पीड ऑफ सी वुड बी 9 × 9 81। तो मतलब जब ये 100 करेगा, मीटर्स में कह लेते हैं, तो कैट सी करेगा 91 इन मीटर्स। बट किलो रेस कितना ही था, रेस कितनी है? 10 किलोमीटर की, 10,000 मीटर्स की, है ना। तो 10,000 करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो मतलब जब ये 10,000 करेगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8100 करेगा। तो जब ये 10,000 मीटर्स करेगा तो ये 8100 मीटर्स करेगा, तो ये कितना पीछे होगा? 1900 मीटर्स पीछे होगा। 9100 मीटर मतलब 8100 मीटर, तो 1900 मीटर्स पीछे होगा। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 1900। अभी कैसा लग रहा है क्वेश्चन? वॉज इट इजी जस्ट बेस्ड ऑन द रेशियोज ऑफ द स्पीड्स? यस और नो? सर ये तो बहुत टाइम लिया, नहीं लिया, समझाने में टाइम लिया। श्रेया, समझाने में टाइम लिया। देखो, मेरी बात समझो, तो अभी मुझे खुद करना है श्रेया। देखो मैंने कैसे करना था एक बार।
मैंने पहली सिचुएशन से बेटा, जब मैंने यहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, मतलब जब ए ने 10 किया, बी ने 9 किया। एंड बी बीट सी बाय 10 किलोमीटर, जब बी ने 10 किया, सी ने 9 किया। तो इन दोनों का रेशियो यहीं पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे कॉमन करने के लिए इसको यहाँ पे 100 यहीं बना देना था, यहाँ पे 90 बना देना था, यहाँ पे 90 बना देना था, और यहाँ पे 80 का, और यहाँ से सीधा और 100 और 81 उठा देना था। अभी कैसा लग रहा है ईशा? बेटा मैंने एक्सप्लेन किया बहुत धीरे धीरे, वरना बस इतना ही करना था जो मैंने ब्लू से लिखा है। अभी अभी छोटा हो गया। I just showed you the full thought process actually. Yes. अभी मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने ये क्वेश्चन कहा था किया था, अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था? मैंने पहले फास्ट किया और फिर स्लो किया था, तो कितना टाइम लगा था श्रेया समझने में? फिर उसके बाद तुम्हारा भी फास्ट हो गया था। अब मैंने इस क्वेश्चन में पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया लंबा, और फिर छोटा किया। चीज तो वही है ना बेटे, तो शॉर्टकट लंबा नहीं है। अगर आप ABCD XYZ में पढ़ जाते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ जाते हैं, फिर ये बहुत लंबा होता है ना श्रेया? यस। डू यू एग्री और नॉट? मैं सिर्फ इसको ब्लू लाइनर, जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई वहां से कर सकता है। ठीक है, तो समझने में समय लगेगा श्रेया, नो डाउट। वहाँ आई एम टोटली एग्री, बट लंबा नहीं। ठीक है, ओके। सो देयर वर मेनी फ्यू क्वेश्चंस मोर हैव केप्ट फॉर यू, बट अब समय की पाबंदी है, समय की कमी है, हमने काफी कुछ पढ़ाई भी की। आई होप यू एंजॉयड।